First of all, we will do the Vande Mataram and then we will start our session formally. Bharat Mata Ki Jai. Bharat Mata Ki Jai. I welcome you all in this webinar mode meeting of the BVSS International Tax Group. And especially I welcome our senior member and advisory board member Anil Sharma ji in the panel. I welcome Baldev Raj ji, advisory board member and expert in indirect tax and direct taxes. I welcome the secretary of BVSS Vipin Agrawal ji, convener of this group Manu Karol ji, and our learned speaker for this webinar event, Shri Gaurav Singhal ji. I welcome you all, and I am seeing that CA Shweta Garg has also joined as the panelist. I welcome her also in this webinar. Friends, this is an unprecedented time the world is facing, and we are in a situation that everyone is fighting from two things. First one is the disease, the COVID-19, which we are facing. And another one is our working, our internal thinking, our thoughts, and our quarantine situation which we are facing. And to cope up with this situation, everyone is doing at their best to come out of the situation. And in BVSS also we thought of having these types of webinar so that our members and professionals at large can benefit from this webinar and engage themselves in the professional activities so as to avoid some unnecessary thinking and also to enrich themselves with the day-to-day operation in the professional field. With this, I welcome each one of you attending this webinar on behalf of the BVSS, and I welcome all the panelists again. And now I over to Vipin ji for taking the webinar further. Thank you. Thank you very much. Thank you, Rohit ji. Thank you very much. Now, going forward, I would request Manu Karol ji to please take over the proceedings and coordinate with Gaurav Singhal ji. Thank you very much. Thank you, Vipin ji. Welcome, Gaurav ji, welcome, Anil Sharma ji, Rohit ji, and Baldev ji. We are delighted to have Gaurav ji, the much awaited seminar, which we had planned earlier. But Gaurav ji was very grateful, and he was the first one, in fact, who had advised us, being the COVID 2019 situation, to postpone it. Gaurav ji, I'm thankful to you, and after your advice, all the programs were delayed, and whatever you had predicted came true. Without much wasting time, since it's an important, MLs have come into effect from 1st April 2020. And all professionals, in our day-to-day business are, anyway, we will all be connected with issuing 15 CACBs. And the importance of MLIs, friends, earlier we used to consider, the Income Tax Act and the Double Taxation Avoidance Agreements. But whereof 1st April 2020, my suggestion is, no 15 CACB can be issued without, going into what the MLIs are, what they say, what MLIs have been, India has entered into various countries,
So I hope, I need not deliberate upon it, the importance of this, the program. And without wasting time, I, request Gaurav ji to begin his deliberations. Thank you. Thank you so much. All the respected senior, all the friends, it is really unprecedented, and a lot has been already said about the situation. A lot will be said about the situation. So I am, for the time being, keeping myself only in that positive zone, that it is giving us an opportunity to sharpen our skills, to study. And that too, it is actually making us wonder that now we can study sitting at home and yet exchange ideas through this wonderful medium. So let's use this medium, and I will take you through the basic conceptual framework of what is a multilateral instrument, and very importantly, how it will impact your day-to-day work. So like all fields of study, even multilateral instrument is a field of study जिसमें काफी सारा हिस्सा theoretical है, काफी सारा हिस्सा जो tax policy makers हैं उनके लिए कुछ guidelines दी हुई हैं, and that is something which they can implement, they will implement. But some part of it is something जो आपको और मुझे directly impact करेगा. ये वो हिस्सा है जो हमारे खुद के decision making as professionals के लिए बहुत ज़्यादा critical है. So my focus will be to focus upon, or my endeavor will be to focus upon that part जो कि हमारे लिए practical implementation का हो. जो part बाकी सरकार को implement करना है, I'm sure they will do that job, and I will not be spending a lot of time on that. But of course, we will touch upon that as well. So what is it that we'll discuss today? Today we will discuss about the background. Multilateral instrument का जो background है, वो actually OECD का एक BEPS initiative है. BEPS stands for Base Erosion and Profit Shifting, और वहां से MLI का जन्म हुआ. So we'll talk about this background. We'll talk about कि multilateral instrument की जरूरत क्या थी, और अब जब वो आ गया है तो हमारे लिए relevant कैसे. उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं आपको सीधा मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट का एक आर्टिकल करके वो ब्रीफ करना शुरू करूं, बट देन आई थॉट लेट्स अडॉप्ट अ डिफरेंट अप्रोच, स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, कि मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट अगर हमें नहीं भी पता तो क्या वो मेरे डे टू डे डिसीजन मेकिंग के ऊपर, अगर मुझे एक एक्चुअल में 15 CB इशू करना है तो जो मैं अभी तक एक्सरसाइज किया करता था वो एक्सरसाइज कैसे चेंज हो जाएगी. उसका पहले एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करेंगे, which will be a very live illustration. We'll actually go to the website of the income tax department. We'll go to the website of OECD. I'll tell you about a very amazing tool for MLI, and that is all something that we'll run parallelly here through this medium. So that is an illustration that we'll go through. We will also check the mechanics of the MLI. That is, MLI operate कैसे करता है, how does it function, उसके अंदर क्या क्या क्लॉजेस हैं और वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. उसके बाद हम कोर MLI पे आएंगे कि कौन कौन से चेंजेस उस MLI के थ्रू आए हैं. आज के सेशन के अंदर हम जो MLI के अंदर चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे. कल के सेशन में, पार्ट 2 ऑफ द सेशन के अंदर हम लोग इसी डिस्कशन को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और उसके बाद MLI को लेके इंडिया की पोजीशन क्या, बिकॉज MLI इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अलग अलग देश अलग अलग पोजीशन रख सकते हैं, और वो दो देशों की पोजीशन एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेगी, वो हर 2 पेयर ऑफ कंट्रीज के केस में अलग अलग ऑपरेट करेगा. सो इंडिया ने वो पोजीशंस क्या ली हैं, एंड उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल केस स्टडी, कि अगर हमें ये समझना हो कि चलिए इतना सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटी जो MLI से इंपैक्ट हुई है और वो कैसे इंपैक्ट हुई है. So I have picked up Japan Treaty. Japan Treaty is something which is in a balanced way impacted by MLI. It is not completely left unimpacted by it. It is not very much over impacted by it. वो कहीं पे बीच में है, balance में है. So tomorrow we'll also look at the India-Japan Treaty और उसमें क्या क्या changes आए हैं MLI के अंदर. तो in a sense of talking, जो हम आज discuss करेंगे उसका practical application और उसका recap हम कल इस केस स्टडी के थ्रू, जहां पे हम सिर्फ इंडिया जापान ट्रीटी के इंपैक्ट को देखेंगे, उसके थ्रू भी हम कर रहे होंगे. सो एट एनी स्टेज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव एन ऑप्शन टू पुट द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स और इन द Q&A. I will probably maintain the flow of this discussion, but I will also pause time to time to look at the chat box and the Q&A box to answer those questions verbally right now. If the question is something for which I think I should answer later on because मुझे आता नहीं है, तो मैं ये प्रिटेंड करूंगा कि मुझे आता है, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, तो मैं इसके बारे में आपको बाद में जवाब दूंगा. सबसे पहली चीज, व्हाट इज BEPS? हमने BEPS के बारे में बहुत सुना है. BEPS एक्चुअली एक नेगेटिव वर्ड है. BEPS
का फुल फॉर्म है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कोई भी ऐसी टैक्टिक, कोई भी ऐसा हथकंडा जिसके थ्रू टैक्स पेयर्स और यूजुअली कॉर्पोरेट्स बोला जाता है, बट ये जरूरी नहीं है, इट कैन बी इवन इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। हमने तो स्पोर्ट्समैन के केस के अंदर, मेसी के केस के अंदर भी देखा है दैट यू नो दे वर आल्सो इंडल्जिंग इन टैक्स अवॉइडेंस टैक्टिक एंड उनके अगेंस्ट एक डिसीजन एग्जिस्ट करता है आज की तारीख में। सो एनी सच tactics because of which any gap is misused, any gap in the treaties is misused, because of which certain taxable income it vanishes. An income which should have been taxable in India, that income somehow disappears. And that is the theme of BEPS. Basically, आप एक हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन से प्रॉफिट्स को निकाल के एक दूसरी जुरिस्डिक्शन में लेके जा रहे हैं, जो कि शायद एक लो टैक्स जुरिस्डिक्शन है जिसे हम शॉर्ट में एलटीजे कह देते हैं, या एक नो टैक्स जुरिस्डिक्शन है जिसे हम शॉर्ट में एनटीजे कह देते हैं। और वहां पे लेके जाने के लिए जो आपने एक एक्टिविटी, बहाना, सरचार्ज, सर्विस फीस या चार्ज लगाया है कि भाई मैं एक हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन से पैसा निकाल के एक लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में क्यों लेके जा रहा हूं, तो अगर उस लो टैक्स जुरिस्डिक्शन में देखा जाए तो क्या कोई एक्टिविटी हो रही है? एंड द आंसर टू दैट इज प्रोबेबली नॉट। कोई रियल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है जिसके लिए वो एक लो टैक्स जुरिस्डिक्शन एक हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन से पैसा निकाले जा रही है। एग्जांपल के तौर के अंदर इंडिया इज from a general perspective, one may consider कि India is a somewhat high tax jurisdiction in comparison to a lot of other low tax jurisdictions such as Luxembourg, such as Ireland, etc., Mauritius at times. So a lot of time it is alleged that charges which are debited upon the Indian group companies are for services which are so-called rendered by companies located, by group companies located in a low tax jurisdiction such as Luxembourg, such as Malta, etc. But वहाँ पे actually में कुछ काम तो हो नहीं रहा है। So ये सारी जो tactics होती हैं, these are collectively called base erosion and profit shifting. Essentially what happened is that somewhere around 2013, everybody had completely realized that because of these tactics, governments are suffering, because उनके revenues कम हो रहे हैं, administration cost बहुत बढ़ रही है, जो integrity है of पूरा taxation system, the legal system, that is suffering, because जो इंसान ज्यादा creative तरीके से इन BEPS के tactics को use कर पाता है, उसे tax नहीं पे करना पड़ता, ना कि पे करना चाहिए, और इसकी वजह से public spending के अंदर जो investment है वो आ ही नहीं रही है। इंडिविजुअल्स के लिए भी बहुत बर्डन था, ऑफ कोर्स बिजनेसेस के केस के अंदर भी इंपैक्ट पड़ा करता है, जहां पे जब एक जुरिस्डिक्शन कहती है कि बॉस बहुत हो गया, अब मुझे इसे रोकने के लिए एक यूनिलेटरल एक्शन लेना पड़ेगा। अब यूनिलेटरल एक्शन में क्या मतलब होता है कि सपोज कर लीजिए, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इक्वलाइजेशन लेवल। इक्वलाइजेशन लेवल इज अ यूनिलेटरल एक्शन। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के ऊपर टैक्स लेने का कोई तरीका चाहिए था। गवर्नमेंट्स वर्ल्ड ओवर वर ट्राइंग टू टैक्स गाफा, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक एंड एप्पल, जिसमें से जीएनए, गूगल एंड अमेजॉन, इनकी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को टैक्स करने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज इट्स बिजनेस इनकम, और बिजनेस इनकम को टैक्स करने का जो थंब रूल होता है वो तो ये होता है कि देयर शुड बी अ पीई टू टैक्स एट बिजनेस इनकम इन इंडिया। देयर वाज नो पीई इन इंडिया ऑफ गूगल, ऑफ फेसबुक, at least that was the position which was being taken. So what was the outcome which the Indian government came up with? They said okay fine, एक काम करते हैं, और कोई देश माने ना माने, ट्रीटी के हिसाब से कर नहीं सकते, हम अपने फाइनेंस एक्ट के अंदर इक्वलाइजेशन लगा देते हैं। अब ये यूनिलेटरल एक्शन है। अब इस यूनिलेटरल एक्शन की वजह से भी एक नुकसान होता है, और वो क्या नुकसान होता है? इंडिया ने तो देखिए साहब अपना टैक्स ले लिया, लेकिन जो टैक्स इंडिया ने इस इनकम पे लिया, वो इनकम तो दूसरे देश में भी टैक्स हो रही है, उनकी होम कंट्री में भी टैक्स हो रही है, और क्या उस होम कंट्री में इक्वलाइजेशन लेवल का क्रेडिट मिलेगा? मे बी नॉट, बिकॉज मे बी द अदर कंट्री विल टेक अ पोजिशन दैट इक्वलाइजेशन लेवल इज नॉट इनकम टैक्स, एंड हम आपको ट्रीटीज के अंदर इनकम टैक्स का क्रेडिट देने के लिए तैयार है, बट इक्वलाइजेशन लेवल इनकम टैक्स नहीं है, वो तो फाइनेंस एक्ट के अंदर एक लेवल लगती है। अगर कोई कंट्री ऐसा पोजीशन लेती है तो देखिए बिजनेसेस को भी डबल टैक्सेशन सफर करना पड़ेगा, और उस डबल टैक्सेशन के अगेंस्ट कोई ट्रीटी में रिलीफ नहीं मिलेगा। इन सब सिचुएशंस के चलते इसी स्टेज के ऊपर ओईसीडी ने से कहा कि बॉस हमें एक बेप्स प्रोजेक्ट, अब मैं बेप्स प्रोजेक्ट वर्ड जब यूज करूं, इट्स नो मोर अ नेगेटिव वर्ड, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। बेप्स वाज अ नेगेटिव वर्ड, the tendencies, the strategies, the tactics to avoid paying taxes, but BEPS project was a project to stop this BEPS actions, to stop these tactics, and that's where in 2013 OECD ने अपनी एक फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट करी, पब्लिश करी, और उसके बाद जुलाई में जाके उसने कहा एक काम करते हैं बॉस, हम 15 एक्शन प्लान्स डिसाइड करते हैं, बातें तो बहुत हो गई हैं, 15 आइटम्स डिसाइड करते हैं कि ये काम करने हैं, और इन सारे कामों के लिए हम टाइमलाइंस डिसाइड करते हैं, और इन टाइमलाइंस के बेसिस पे हर एक इस एक्शन प्लान की एक करके इंटरिम और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट्स निकलेगी, और उनके बेसिस के ऊपर ये जो सारी बेप्स टेंडेंसीज चल रही हैं, जो बेप्स टैक्टिक्स चल रही हैं, उन्हें रोका कैसे जाए, उसके बारे में हम कुछ एक्शन लेंगे। सो OECD said that let's do it, and this time the interesting part is OECD
हमेशा ना एक ग्रुप ऑफ क्लब ऑफ रिच कंट्रीज था। तो हमेशा ऐसा लगता था कि ओईसीडी जो भी करेगा वो तो सिर्फ अपनी रिच कंट्रीज के अंदर काम करने वाली कंपनीज के फायदे के लिए होगा। वो हिंदी में एक कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी फेफेर अपने को दे, यानी कि वो घूम फिर के अपने ही लोगों का बेनिफिट करेगा। बट दिस टाइम in the BEPS project, G20, they partnered with OECD, and therefore BEPS is not an exclusively OECD project. It's an OECD plus G20 project, and G20 includes a lot of countries which are not OECD members. India, for instance, we are not OECD members, but इंडिया ने इस BEPS प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के बढ़ावे के साथ पार्टिसिपेट किया और उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। एंड देयर आर पीपल विद whom we personally interact with and have the opportunity and fortune to interact with them, and they are actually praised at an OECD level that what a fantastic contribution they made from India to this project. So ये 15 एक्शन प्लान्स जो मैंने आपको बताया BEPS के अंदर OECD ने कहा कि यार कुछ एक्शन करना है तो एक्शन प्लान्स को लिख लेते हैं और उनके ऊपर कुछ काम करेंगे, उन पर रिपोर्ट निकालेंगे। तो OECD ने 15 एक्शन प्लान्स डिसाइड किया। वो 15 एक्शन प्लान्स कौन से थे? These are the ones which you can see on screen. The first one of course is digital economy, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बोलबाला है आज भी डिजिटल इकोनॉमी की, डिजिटल सॉल्यूशन की वजह से आप और मैं इस मीडियम को यूज कर पा रहे हैं। Neutralizing hybrids and you can see the entire list here. I will not speak through the entire list for the reason that not all of these are addressed through MLI. A few of them are. For instance, the neutralizing hybrids part is addressed. Very importantly, parts action plan 6 and action plan 7 at the bottom of the screen, prevention of treaty abuse and prevention of PE avoidance, artificial PE avoidance, इन दोनों के लिए multilateral instrument के अंदर specific articles हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर आखिरी आइटम खुद multilateral instrument था। OECD ने एक्शन प्लान 15 के अंदर कहा कि हम एक मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट साइन करेंगे, पर उसने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज OECD को पता था कि बॉस हमने सारे के सारे एक बार रिकमेंडेशन दे दिया और उसके बाद इन सरकारों पे खुद पे छोड़ दिया ना कि तुम अब एक काम करो, हमने तो रिकमेंडेशन दे दिया, अब इन रिकमेंडेशंस को तुम अपने आप इंप्लीमेंट करो। तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा कि गवर्नमेंट्स अपने लोकल लॉ के अंदर चेंज करेंगी और ट्रीटीज को रीनेगोशिएट कर रही होंगी। दैट मींस एक एक ट्रीटी को, एक एक बायलैटरल ट्रीटी को बार बार अलग अलग रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर टाइम बहुत लगेगा। एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है जो हम हमेशा दिया करते हैं जब भी कोई इंटरनेशनल टैक्स की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि इंडिया यूएस की ट्रीटी को नेगोशिएट करने में 20 साल लग गए थे साहब। तो अगर एक एक ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया गया तो कितना टाइम लगेगा और उसमें टाइमिंग गैप्स आएंगे। एक ट्रीटी पहले रीनेगोशिएट हो गई BEPS रिकमेंडेशंस के हिसाब से और दूसरी ट्रीटी बाद में रीनेगोशिएट हुई, मान लीजिए 3 साल बाद। तो इन 3 साल के अंदर इन दोनों ट्रीटीज में से एक ज्यादा फेवरेबल होगी या कम फेवरेबल होगी और इनके बीच में भी ट्रीटी शॉपिंग शुरू हो जाएगी। आर यू फॉलोइंग दैट पार्ट? Similarly, it is also possible that कि अगर मैं ग्लोबल लेवल के ऊपर बायलैटरल रीनेगोशिएशंस अलाउ कर दूं, क्या ठीक है आप बायलैटरली रीनेगोशिएट कर लीजिए, अपने आप देख लीजिए, हमने तो बस आपको ज्ञान देके छोड़ दिया, लैंग्वेज आप अपने आप से डिसाइड कर लीजिएगा। Every country, every negotiator will try to tinker with the language to get a slightly more advantageous position than he got in his last round of negotiation. हम सबकी आदत होती है कि हमने जो भी नेगोशिएशन एक बार करी उससे लर्न करें और अगली रीनेगोशिएशंस के अंदर किसी और कंट्री के साथ ही सही चाहे मैं उससे कुछ बेटर अचीव करने की कोशिश करूं, बिकॉज ट्रीटीज आर आल्सो नेगोशिएशन स्पेस, बिकॉज ऑफ व्हिच अ स्ट्रेंज सिचुएशन विल अराइज। जितनी भी ट्रीटीज है उन सब के अंदर जो लैंग्वेज होगी वो अलग अलग होगी और वो अलग अलग लैंग्वेज की वजह से अभी भी कोई ट्रीटी ज्यादा बेनिफिशियल होगी, कोई कम बेनिफिशियल होगी और अगेन ट्रीटी शॉपिंग के ऑप्शंस ओपन रहेंगे। और इसीलिए द आइडिया वाज टाइमिंग डिफरेंस को कम से कम किया जाए, एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया जाए और वही स्टैंडर्ड लैंग्वेज सारी कंट्रीज मोर और लेस अडॉप्ट कर ले। उसके अंदर चलो 2-3 ऑप्शन भी दी जा सकती है कुछ चीजों पे और जो हम आज ही देखेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए कि हर दो कंट्री अपनी मर्जी से अपनी ट्रीटी को रीनेगोशिएट करे बायलैटरली और उसकी लैंग्वेज अपनी मर्जी से डिसाइड करे, बिकॉज देन इट विल बी अ वेरी वेरी फ्री फॉल ऑल काइंड ऑफ अ सिचुएशन व्हिच विल बी हाईली एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ अब्यूज। सो ये तो हुआ कि मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट जैसा तरीका यूज ही क्यों किया गया जब हम आज तक सिर्फ बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के रिजाइम में जी रहे थे और खुशी से जी रहे थे। तो मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट का जो आइडिया का जो कॉन्सेप्ट की जो फिलॉसफी यूज की गई उसका कारण तो साहब ये था। अब मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली अगर मैं फंडामेंटल लेवल पे बात करूं, अगर एक बहुत हाई लेवल व्यू पे आपको बात करूं तो वो क्या चीज है? इट्स बेसिकली अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू कई सारी ट्रीटीज एक बार में, सारी ट्रीटीज नहीं बट कई सारी ट्रीटीज एक बार में बड़ी स्विफ्टली मॉडिफाई हो जाएंगी और उसमें अगर किसी देश को लगता है कि नहीं हमारी ट्रीटी पॉलिसी थोड़ी सी अलग है तो थोड़ी बहुत ऑप्शंस भी दी गई हैं।
ये एक ऐसी ट्रीटी है, ये एक ऐसा लिटरेचर है जिसे किसी ने अकेले बैठ के नहीं बनाया, ओईसीडी ने भी अकेले बैठ के नहीं बनाया, 100 से ज्यादा देशों ने मिलकर इसे बनाया है। एंड देयरफॉर ये माना जा सकता है कि जब इतने सारे समझदार लोगों ने इस पे दिमाग लगाया है तो इट विल बी समथिंग बैलेंस्ड, इट वुड हैव टेकन केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ऑल ऑफ देम। MLI मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, अब जब आप पढ़ेंगे तो सर यू विल स्टडी इट अलोंग विद द एग्जिस्टिंग ट्रीटीज। तो अब आप डबल टैक्सेशन अवॉर्डेंस एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे, MLI भी पढ़ेंगे, और अब इन दोनों से जो कंबाइंड रिजल्ट निकलेगा उसको आप एक्ट से कंपेयर करेंगे, बिकॉज सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 तो अभी भी है। तो अब आपके पास पढ़ने के लिए 2 नहीं बल्कि 3 चीजें हो गई हैं, और अभी थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि 3 की भी शायद 4 हो जाएंगी, बट अभी थोड़ी देर में इस पे आते हैं। बिकॉज ऑफ MLI व्हाट विल हैपन इज कि आपके जो एग्जिस्टिंग ट्रीटी के प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस चेंज हो जाएंगे, कई सारी जगहों पे वो सुपरसीड हो जाएंगे, और वो कैसे होंगे दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू स्टडी टुडे। हम लोग MLI के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? वैसे तो आई थिंक यू नो आई हैव कन्वेड द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक, द क्रिटिकलिटी ऑफ दिस टॉपिक, बट स्टिल let's look at it again because I think MLI significantly alters our settled tax positions. हमें जो अभी तक लगता था कि tax positions settle हो गई हैं, we were very comfortable with those tax positions, then those tax positions will become unsettled, and this is a binding agreement. This is a binding agreement because each of the country's finance ministers are going out and signing it. That's point number one. So I would not say that they are like WTO. I would say they are like double taxation avoidance agreements in the sense of talking without a need for notification. Can we also say that there's a change in the definition of non-resident under the Income Tax Act because of BEPS? No, well, not really because of BEPS, but because of some other things. So we'll talk about that. So these were a couple of questions that I just saw and I answered them. Coming back, when does it start impacting us? And as Manu Saab just now mentioned, this is something which has already happened. In respect of several treaties that we already have, more than 20 treaties, right? MLI has already got activated. It has already become applicable with effect from 1st of April 2020. That means कि आप इस साल में साहब फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर अपने किसी क्लाइंट को कोई एडवाइस कर रहे हैं कि एक नॉन रेजिडेंट रेमिटेंस के ऊपर TDS किस तरीके से काटना है, तो हो सकता है वो एडवाइस जो है वो आपकी इनकम्प्लीट रह जाए अगर आप MLI को नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जाके कुछ आपको इम्पैक्ट करेगा, इट इज ऑलरेडी हियर, इट इज ऑलरेडी इम्पैक्टिंग यू विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ इन विच वी आर सिटिंग टुडे। It affects practitioners because हम लोग एडवाइस दिया करते हैं, हम 15CB सर्टिफिकेट्स दिया करते हैं, हम बाद में अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कमेंट करते हैं कि क्या टैक्स ही से कटा है नहीं कटा है। It affects the taxpayers because अगर हमारी एडवाइस सही है गलत है, लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी पोजीशन ली जो MLI को इग्नोर करते हुए ली गई और वो पोजीशन बाद में टैक्स ऑफिस ने कह दिया कि ये पोजीशन गलत थी, तो अभी भी penal consequences will be suffered by the taxpayers. It is not something, and you know, ideally I should say MLI is very simple, and ideally the job of a person who's communicating, who's teaching, who's coaching is to give you a comfort कि नहीं बहुत आसान है, टेंशन की बात नहीं है. But really I wish I could say that MLI is complex for a reason, because it is not applicable in an identical manner to all the treaties. It may apply to some treaties and it may not apply to some treaties. Point number one. Point number two, even amongst the treaties to which it will apply, to some treaties it will apply in a different manner as against other treaties, because इसमें भी कई सारी options opting in and opting out है, and I'll take you through that also. As I mentioned, मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं सीधा आपको इस MLI के क्लॉजेस के ऊपर जंप करके एक करके उसके बारे में कहानी सुनाना शुरू करूं, बट मुझे लगा पहले उसके बारे में एक इलस्ट्रेटिव एक्सरसाइज देखते हैं, बिकॉज उससे हमें शायद ये पता चलेगा कि is it really that visible to us, and if it is not, then what should we do? And even where it is visible to us, it completely changes our existing understanding. So let's look at an exercise which is right now in front of your screen. मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपके पास अगर कुछ स्लाइड्स आई हैं तो उनमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो यू कैन जस्ट लुक एट द एक्सरसाइज ऑन स्क्रीन. व्हाट डज इट से? इट सेज कि एक कैनेडियन कंपनी ने एक इंडियन कंपनी के 26% शेयर्स एक्वायर किए फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर. अभी तक किसी और शेयर होल्डर के पास थे. मान लीजिए अभी तक जिस शेयर होल्डर के पास थे वो माल्टा में, बर्म्यूडा में, किसी भी नॉन ट्रीटी ज्यूरिसडिक्शन में बैठा हुआ था, और अब उस पुराने शेयर होल्डर से एक कैनेडियन कंपनी ने एक हिंदुस्तानी कंपनी के 26% शेयर्स एक्वायर किए. इट्स अ गुड परसेंटेज, इट्स अ फैट परसेंटेज.
ये शेयर्स एक्वायर किए उसने आज की तारीख के अंदर, टुडे इज 8th of April 2020, शुभ से शीघ्रम, उसने आज इन शेयर्स को एक्वायर कर लिया। और उसके बाद चंद महीने रुक के जुलाई के अंदर उस इंडियन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। ना साहब, ये तो हम जानते हैं कि पहले डिविडेंड की डिक्लेरेशन के ऊपर कंपनीज को डीवीडी पे करना पड़ता था, लेकिन अब तो डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड देयरफॉर दिस डिविडेंड will be taxable in the hands of the Canadian share. Now, as per section 115A, और अब तो थैंकफुली इसके टीडीएस के लेके भी फाइनेंस एक्ट के अंदर फाइनली एक अमेंडमेंट आ गई है, इस पे जो टैक्स रेट एंड टीडीएस रेट एप्लीकेबल है दैट इज 20%। लेकिन हो सकता है ट्रीटी मुझे इसके ऊपर कुछ रिलीफ देती हो। मैं इंडिया कनाडा ट्रीटी देखूंगा तो हो सकता है मुझे इसमें कुछ रिलीफ मिले कि भाई इंडिया कनाडा ट्रीटी क्या कहती है कि ठीक है इससे एक लोअर रेट पे टैक्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपके क्लाइंट ने आपसे पूछा है कि सर प्लीज टेल मी कि इस पे टैक्स रेट क्या लगेगा, इस पे टीडीएस रेट क्या लगेगा। आफ्टर ऑल उसे आपसे 15CB का एक सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो अगर मुझे ये समझना है तो मैं क्या करूंगा, एंड नाउ मैं अपनी स्लाइड से मूव करके एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर शिफ्ट करूंगा जहां पे मुझे एक्चुअल में अगर कभी कोई ट्रीटी देखनी होती है तो मैं कैसे देखता हूं। एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि डोमेस्टिक लॉ में तो 115A में ये 20% रेट से टैक्सेबल है, लेकिन देखते हैं ट्रीटी क्या कहती है। और ट्रीटी के लिए आई नाउ टेक यू टू द इनकम टैक्स website, which is usually considered a very good source, reliable source of the treaties. Can everybody see the income tax website on your screen? If yes, you can raise a thumbs up. Thank you. Thanks. So you have the income tax website. इसके ऊपर पूरी सारी treaties हैं। क्योंकि मैं कनाडा इंडिया ट्रीटी की बात कर रहा हूँ तो मैं कनाडा पे गया and I have now the Canada treaty in front of me. It says Canada और आगे लिखा हुआ comprehensive agreement. ये नोट करने वाली चीज है बिकॉज मैं 1 मिनट के अंदर आपको दिखाऊंगा, ये शायद कंप्लीट ना हो। सो लेट्स लुक एट द comprehensive agreement right now. अगर मैं comprehensive agreement देखता हूँ इसके अंदर डिविडेंड के क्लॉज पे जाता हूँ, so it tells me that article 10 tells me that firstly तो of course paragraph 1 हमेशा ये कहा करता है कि the taxing right will be with the resident state जहां पे dividend receive होगा, लेकिन source state जो कि इंडिया है उसके पास भी taxing right है। And what does that paragraph 2 says? Paragraph 2 says such dividends may also be taxed in the country of which the company paying the dividend is a resident, that is India, and according to the laws of that state. But if the recipient is a beneficial owner of the dividend, the tax so charged shall not exceed 15%. So while domestic law says 20%, Canada treaty says 15%. मैं 15% वाला क्लॉज क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि 15% वाले क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है कि अगर 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग शेयर होल्डर के पास है तब तो 15% का क्लॉज लगेगा। अगर ये छोटा मोटा शेयर होल्डर है जिसके पास 15%, 10% की भी शेयर होल्डिंग नहीं है तो उस पर 25% लगता है। मेरे एग्जाम्पल में तो 26% शेयर होल्डर है साहब, तो इसीलिए this shareholder will enjoy a 15% tax rate on the dividend, and this tax rate being lower than the rate mentioned in 115A will apply. Section 90 subsection 2 says whichever is beneficial. तो अगर मैं अपने ट्रेडिशनल तरीके से चलता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है? डोमेस्टिक लॉ सेज 20%। मैं इनकम टैक्स के वेबसाइट पे गया हूँ, which I think is a very reliable source, और उससे मुझे क्या पता चलता है? 15%, whichever is lower, and I'll happily say सर 15% पे टैक्स काट लेते हैं, and that is the end of the story. But is that really the correct position? And we will learn in the course of this today's session only that it is not. इंडिया और कनाडा की ट्रीटी भी एमएलआई से इंपैक्ट हुई है, बट अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे देखें आपको उसका कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखता। सो अब अगला सवाल जाहिर ये पैदा होता है कि गौरव एक बात बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रीटी एमएलआई से इंपैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। Let me give you a tool for that, and it's a wonderful tool. It's a good tool. It is not a legal text, but what is that tool? Let's go back to the slides here. इसमें आप second point देखेंगे, OECD matching database. Let me take you to this link, which is, as you can see here, oecd.org. It's OECD's own official link. It is not a private link. And now if I go there, I have a new window which is loaded in front of me, and it contains an Excel based tool. This Excel based tool will help me understand whether or not an existing treaty is impacted by a multilateral instrument or not. What I'm doing is मैं स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि आपके लिए विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाए। So here you see two drop downs. एक drop down यहाँ पे और दूसरा drop down यहाँ पे. Can you see the icon moving between these two?
If you can, please show me a thumbs up. Otherwise, I'll do an annotation. Okay, great. This is the first drop down. Here I selected India. I clicked India here. The treaty that I'm looking at is India-Canada treaty. I did another drop down in the second in the accompanying field, and I clicked in Canada. India-Canada treaty. This is what I want to learn about. And India-Canada treaty के ऊपर whether or not there is an impact. Firstly, तो मुझे पता चल रहा है कि yes, India and Canada की जो treaty है, उसमें MLI की वजह से impact आ रहा है. There's an impact on MLI because there's a ratification by India on 7th of June 2017. There's a ratification by there's a ratification by India in June 19. There's a ratification by Canada in August 19. हम दोनों ने एक दूसरे को ऑप्ट किया है कि हाँ हमारी ट्रीटी से इफेक्ट होगी. डिविडेंड को लेके कोई चेंज है या नहीं है, देखते हैं. चलिए DIVIDEND मैंने डिविडेंड करके इसके अंदर टाइप कर दिया. नीचे देखिएगा आर्टिकल 8. आई हैव स्क्रॉल्ड इट अप. नाउ इट इज एट द टॉप ऑफ दिस वेरी स्क्रीन. आर्टिकल 8 डिविडेंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, एंड इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 8. आर्टिकल 8 कौन सा? हम तो अभी जो देख रहे थे दैट वाज आर्टिकल 10. That was Article 10 of the treaty. Article 8 of the MLI, which we'll discuss today. Article 8 would apply with respect to Article 10(2)(a. Article 10(2)(a कौन सा है? वही जो अभी हमने right now देखा है. Article 10 डिविडेंड के केस के अंदर एक सोर्स कंट्री को जो 15% का टैक्सिंग राइट देता है, वो आर्टिकल 10(2)(a है. एंड इस टूल के बेसिस पे मुझे इतना तो पता चल रहा है कि यस, लगता है कुछ चेंज तो आया, बट क्या चेंज आया अभी भी मुझे ये बात टूल नहीं बता पा. This tool is not able to tell me completely कि what exactly is the change. और वो चेंज जानने के लिए आपके पास जो अकेला मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स है, that is sir the MLI position. This is a link which takes you to the only authoritative source for MLI positions for each of the countries. And आपको यहाँ पे इंडिया की MLI पोजीशन देखनी होगी, कनाडा की MLI पोजीशन देखनी होगी. दोनों को पहले एक दूसरे के साथ रख के समझना होगा कि इंडिया ने कनाडा ट्रीटी के अंदर और कनाडा ने अपनी इंडिया ट्रीटी के अंदर क्या चेंज माना है, जिसकी वजह से ये डिविडेंड का क्लॉज जो अभी हम पढ़ के चुके हैं और हमें लग रहा है हाँ 15% टैक्स रेट सही तो है, वो क्लॉज चेंज हो जाता है, उसका आंसर बदल जाता है. राइट नाउ व्हाइल आई विल शो यू हाउ दिस पेज लुक्स लाइक, I will not take you through the task of reading each of these positions, but एक बार देख लेते हैं. ये कनाडा की positions आ रही हैं यहाँ पे. If I click here, it will take me to Canada position, and similarly, if I go to India, it will take me to India positions as well. And then मैं Canada positions के अंदर देख सकता हूँ कि कनाडा ने इंडिया के डिविडेंड के बारे में क्या कहा, और इंडिया के मैं देख सकता हूँ कि इंडिया ने कनाडा की ट्रीटी के अंदर डिविडेंड के बारे में क्या कहा है. But as you can already see, this is quite an exercise. ये तो बहुत ज्यादा सरदर्दी का काम है सर. एंड इस सरदर्दी को थोड़ा कम करने की कोशिश की गई. वो कोशिश कंप्लीट नहीं है, एंड वो कोशिश अभी भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट नहीं है. लेट मी टेल यू अबाउट दैट कोशिश आल्सो. एक बार हम वापस यही सोचते हैं कि मैं इसी एग्जांपल पे वापस जाता हूं, लेकिन एक चेंज कर देता हूं. फर्स्ट कर लीजिए, ये होल्डिंग ये जो शेयर होल्डर एंटिटी है, ये अगर कैनेडियन एंटिटी ना होके सर्बियन कंपनी होती, मैं सर्बिया चूज कर रहा हूं, एंड देयर इज अ रीजन आई एम चूजिंग सर्बिया, तो क्या होता? तो वापस एक बार काम करते हैं, वापस इसी लिंक के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि अगर मैं कनाडा की जगह सर्बिया कर देता हूं तो व्हाट विल हैपन. एंड इट विल गिव यू सम सेंस ऑफ रिलीफ, नॉट अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ, बट सम सेंस ऑफ रिलीफ कि इतना शायद कॉम्प्लिकेशन ना भी हो, बट फिर भी यू विल हैव टू बी ऑन योर गार्ड. नाउ लेट मी क्लिक सर्बिया. आई क्लिक सर्बिया फॉर अ रीजन, बिकॉज आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था और मैंने आपको हाईलाइट किया था, जब आप कनाडा की ट्रीटी देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट. और अब मैं जो देख रहा हूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है सिंथेसाइज्ड टेक्स्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीटीज की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं सर. कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट. लेकिन जिन देशों का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट की वजह से चेंज हो रहा है, उन देशों में कुछ एक उन कंट्रीज ने और कुछ एक हम कंट्रीज ने मिलके उन MLI के चेंजेस को ट्रीटी के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, और उस नए इंस्ट्रूमेंट को या जो नया टेक्स्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सिंथेसाइज्ड टेक्स्ट. एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ. अगर मैं सर्बिया का सिंथेसाइज्ड टेक्स्ट ओपन करता हूं, एंड अगेन लेट्स अगेन डू अ सर्च फॉर डिविडेंड की डिविडेंड को लेके क्या चेंज आया. आई एम अगेन एट आर्टिकल 10. माइंड यू, हम जब कनाडा ट्रीटी देख रहे थे उसमें भी आर्टिकल 10 ही देख रहे थे, सर्बिया ट्रीटी में भी आर्टिकल 10 देख रहे हैं. अगेन सर्बिया ट्रीटी का अभी जो पैराग्राफ 2 है वो क्या कहता है? वेरी सिमिलरली वर्डेड, वेरी सिमिलरली वर्डेड. व्हाट डज इट से? Such dividend may also be taxed in the contracting state of which the country paying the dividend is a resident.
दैट मीन्स ये डिविडेंड इंडिया में भी टैक्स हो सकता है and according to the laws of that state. But if the beneficial owner of that dividend is a resident of the other contracting state, in this case the other contracting state is Serbia, then the tax so charged by India shall not exceed. कितने से exceed नहीं करना चाहिए? Part 1 क्या कहता है? 5% of the gross amount of the dividend. 5%, सिर्फ 5%. कनाडा ट्रीटी तो फिर भी 15% टैक्स लगा रही थी साहब, इंडिया के अंदर टैक्स लगाने की ऑप्शन दे रही थी. सर्बिया ट्रीटी 5% कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज modified text में और extra लिखी हुई आ गई, and that is modified by paragraph 1 article 8 of the MLI. And what is that modification? It is highlighted in this box. Let's read along with हम सब साथ साथ पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है. Following paragraph of article 8 of MLI applies to subparagraph 1 of paragraph 2 of article 10. What does this paragraph say? Article 8 MLI का क्या कहता है? It says that जो अभी हमने राइट में ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ा है, कौन सा? आर्टिकल 10(2)(1), वो वाला आर्टिकल जो कहता है कि सिर्फ 5% पे टैक्स इंडिया लेगी और नहीं लेगी टैक्स. आर्टिकल 10(2)(1) shall apply only if the ownership condition described in those provisions are met throughout a 365-day period that includes the date of payment. ये आर्टिकल ये कहता है कि बॉस डिविडेंड के केस में जो आप ये लोअर रेट का 5% का बेनिफिट लेना चाहते हो, वो आपको मिलेगा मात्र तभी जब उन शेयर जिन पे डिविडेंड दिया जा रहा है उनकी ओनरशिप कंडीशन आपने सिर्फ एट द टाइम ऑफ डिविडेंड नहीं सेटिस्फाई करी हो, बल्कि 365 दिन के लिए सेटिस्फाई कर रखी हो सर. अब यहां पे आके क्या चल रहा था? अभी तक जब आपने कनाडा ट्रीटी देखी थी या इससे पहले जब एमएलआई नहीं आया करती थी, बहुत सारी ट्रीटीज में ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता. वो तो सिर्फ ये कहता है कि सर अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आप जिस दिन डिविडेंड पे कर रहे हैं, जिस इंसान को डिविडेंड पे कर रहे हैं, वो इंसान अगर इस कंट्री का रेसिडेंट है जिसकी ट्रीटी आप देख रहे हैं, तो एक काम करिए, अगर वो बेनिफिशियल ओनरशिप की कंडीशन को फुलफिल करता है एज ऑन द डेट ऑफ द डिविडेंड, दैट इज ऑल. जिस दिन डिविडेंड दिया जा रहा है उस दिन की तारीख पे वो बेनिफिशियल ओनर है उन शेयर्स का, तो आप ये लोअर रेट ऑफ टैक्स एंजॉय कर लीजिए. 5% का अगर सर्बिया में दे रखा है तो आप 5% पे टैक्स काटिएगा इंडिया के अंदर, उससे ज्यादा पे टैक्स काटने की जरूरत नहीं है. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ज्यादातर इन ट्रीटीज के अंदर कि ये भी जरूरी है इस 5% के टैक्स रेट का फायदा उठाने के लिए कि वो शेयर होल्डर 365 दिन के लिए इन शेयर्स का होल्डर रहा हो. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. कनाडा ट्रीटी अभी हमने देखी, उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी सर. बट एमएलआई ने इस चीज को ऑल्टर कर दिया. एमएलआई कह रहा है कि अगर आपको लोअर रेट ऑफ टैक्स का बेनिफिट उठाना है डिविडेंड में, उठाइए, जरूर उठाइए, लेकिन वो मिलेगा मात्र तभी जब इन शेयर्स के लिए जो शेयर होल्डर था वो 365 डेज तक ओनरशिप की कंडीशन को फुलफिल कर रहा था. नाउ आई टेक यू बैक टू माय एग्जांपल. इन दिस एग्जांपल, is the Canadian company satisfying this test of ownership as on the date of dividend? The answer is yes, but is it satisfying the test of ownership for the entire 365 days? Those who think it does say this, but those who think it does not say this. It does not. It does not. And as a result, जो ये लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट हम बड़े आराम से ट्रीटी को देके देने वाले थे, वो बेनिफिट हम नहीं दे सकते. अब देखिए सर्बिया में तो फिर भी हमें बचा लिया गया, बिकॉज सर्बिया के केस में तो सर थैंकफुली जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको सिंथेसाइज टेक्स्ट मिल गया. भगवान भला करे सीबीडीटी का कि उसने सर्बिया इंडिया ट्रीटी का सिंथेसाइज टेक्स्ट बना के डाल दिया. बट द प्रॉब्लम इज सारी ट्रीटीज का सिंथेसाइज टेक्स्ट ना तो डाला गया है, ना ही वो सिंथेसाइज टेक्स्ट डालने की कोई लीगल ऑब्लिगेशन किसी पे है, ना ही वो सिंथेसाइज टेक्स्ट एक लीगल टेक्स्ट है. देखो सर, अगर सिंथेसाइज टेक्स्ट के अंदर कोई ओमिटेंस हो गई है, कोई ओवरलुकिंग हो गई है, और उसकी वजह से आप सिर्फ सिंथेसाइज टेक्स्ट के ऊपर रिलाई करके एक पोजीशन बता देंगे, तो आपकी लीगल ओपिनियन गलत हो सकती है, आपका 15C भी गलत हो सकता है, और वहां पे आप ये डिफेंस नहीं ले पाएंगे सर कि आई रिलाइड अपॉन द सिंथेसाइज टेक्स्ट व्हिच इज ऑन द इनकम टैक्स इंडियाज वेबसाइट, बिकॉज इनकम टैक्स इंडिया के खुद की वेबसाइट पे लिखा हुआ है दैट दिस इज जस्ट समथिंग व्हिच इज शेयर्ड विद यू एज एन एड. आपकी सिर्फ सहूलियत के लिए किया गया, बट दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ एमएलआई एंड सीटीए टेक्स्ट. दे आर नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ एमएलआई. अभी भी एमएलआई देखना आप ही की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू आर चार्जिंग फीस फॉर दिस, इफ यू आर इशूइंग एन ओपिनियन फॉर दिस, इफ यू आर इशूइंग अ 15CB फॉर दिस, सर एमएलआई ही आपको देखनी पड़ेगी. सिंथेसाइज टेक्स्ट सिर्फ एक शुरुआत के लिए आपको हाथी की पूंछ का काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद पूरा हाथी आपको खुद ही ढूंढना है. As I mentioned earlier and I repeating therefore that सारी की सारी treaties का तो synthesized text exist ही नहीं करता. अभी हमने देखा Canada is an important example. Canada के केस के अंदर यही क्लॉज इसी तरीके से चेंज हो गया जैसे अभी अभी हमने सर्बिया में देखा है. जो चेंज सर्बियन ट्रीटी के अंदर आई है एग्जैक्टली वही चेंज साहब
इंडिया कनाडा चेन ट्रीटी में भी आई है डिविडेंड को लेके कि अगर आपको लोअर रेट ऑफ 15% अप्लाई करना है तो 365 डेज का टेस्ट मीट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसका सिंथेसाइज्ड टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो व्हाट कैन आई डू, आई हैव टू एक्चुअली गो बैक टू द एमएलआई पोजीशंस जो मैंने आपको एक लिंक दिखाया था, और मुझे उसमें जाके पहले कनाडा की पोजीशन निकालनी होगी, इंडिया की पोजीशन निकालनी होगी, और उसके अंदर दोनों की पोजीशन में डिविडेंड को लेके इंडिया कनाडा के बारे में क्या कह रहा है, कनाडा डिविडेंड के बारे में क्या कर रहा है, उन दोनों को जॉइंटली रीड करके एक एमएलआई की इंटरप्रिटेशन निकालूंगा, उसको ट्रीटी के साथ रीड करूंगा. This is the exercise that you have to do now. Therefore, any position on taxation of a foreign remittance, including issuing of 15 CB, is not such a simple task anymore, sir. You'll have to do something a lot more carefully, a lot more diligently, with a lot more time and effort invested in it. जो मैंने अभी आपको एक्सेल वाला टूल दिखाया था, which is called the OECD matching database, अगर आप उस साइट पे भी जाते हैं तो उसमें भी एक केवियट दिया हुआ है, और उसमें भी एक केवियट दिया हुआ है कि सर जो एक्सेल वाला टूल है वो भी अगेन it's not a legal text, and mind you it may contain errors. There are a few situations where I have come across जहां पे मैं उस टूल के ऊपर रिलाई करके एक इनिशियल पोजीशन देने के लिए टेम्प्ट हो रहा था, मेरा मन कर रहा था कि यार ठीक है जब OECD ने इतना बढ़िया टूल बनाया तो गलती तो नहीं करी होगी, लेकिन after that when I actually compared the actual MLI text with what is written in the matching database, I realized that matching database was outdated. Matching database पहले किसी टाइम पे सही रहा होगा, लेकिन वो matching database अभी अपडेट नहीं किया with the changes which have been made because of new countries giving more ratifications for this thing. So a question has been asked from me right now that is there any example where two countries have different positions, and the answer to that, so many of them. And the answer to this will operate in two different ways. Different positions का मतलब ये हो सकता है कि एक देश कह रहा हो कि यार मुझे तो दूसरे देश के साथ की अपनी ट्रीटी पे एमएलआई लगाना ही नहीं, और दूसरा देश कह रहा हो यार हम तो तैयार हैं. जरा ये वाली नीचे वाली इमेज को देखिएगा. इस वाली इमेज के अंदर जो हाथ बढ़ा रहा है वो इंडिया है, और जो मना कर रहा है वो मॉरिशस है. इंडिया ने कहा कि हम इंडिया मॉरिशस ट्रीटी को एमएलआई से इंपैक्ट होने देने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि एमएलआई में जो चेंजेस आए हैं वो इंडिया मॉरिशस ट्रीटी के अंदर भी इंपैक्ट हो. सो इंडिया वाज रेडी टू ऑफर हैंडशेक टू मॉरिशस, बट मॉरिशस सेड थांबा, थैंक यू सो मच, वैसी बड़ी मुश्किल से एमएलआई वैसी बड़ी से मुश्किल से इंडिया मॉरिशस ट्रीटी के डिस्प्यूट्स को सेटल किया, आप लोगों ने हाथ मरोड़ के एलओबी भी एग्री करा लिया. नहीं तो वैसे तो हर 2 साल के अंदर हम एक न्यूज आइटम डलवा दिया करते थे कि हाँ हाँ इंडिया मॉरिशस ट्रीटी जो है वो रीनेगोशिएट हो रही है. साहब मैं 2001 में क्वालिफाई हुआ था, 2003 से एवरी 2 इयर्स मैं पढ़ रहा था कि इंडिया मॉरिशस ट्रीटी रीनेगोशिएट हो रही है, और उसी से काम चल रहा था. लेकिन मॉरिशस ने कहा अब बस आपने एक रीनेगोशिएशन कर लिया एमएलआई के लिए, अभी तो हम हाँ नहीं कर रहे हैं. देयरफॉर is it possible that two countries take different positions? And the answer to that is yes. India said we are okay with changing our India Mauritius treaty. Mauritius said no thank you so much, we love you a lot but MLI नहीं लगानी अपनी treaty के ऊपर, माफ कीजिए. The two countries took different position, and the reason because these two countries took different position, therefore India Mauritius treaty will not be impacted by MLI. Although India तैयार है, लेकिन इंडिया में इंटरप्रेट करते टाइम भी आप MLI नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी जब दोनों देश अग्री कर जाएं कि हाँ हम अपनी ट्रीटी पे एमएलआई लगाने के लिए तैयार हैं, तब तो पहली बार चीज वो ट्रीटी अब डीटीएए के सिवा सीटीए भी कहलाएगा. डीटीएए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सीटीए कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट. सीटीए इज अ कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट व्हिच इज अ ट्रीटी कवर्ड बाय द एमएलआई. दैट्स द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड कवर्ड टैक्स. Therefore what you will see is India Canada treaty, it's a covered tax agreement, although हमें synthesized text नहीं मिला. India Serbia treaty, it's a covered tax agreement, उसका हमें synthesized text भी नजर आ गया. India Mauritius treaty, not a covered tax agreement. Why? Mauritius said thank you so much and therefore could not help it. India US treaty, US ने सभी को कह दिया thank you so much boss, हम तो अपने में great है, हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें MLI में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. And as a result, India US treaty is also not a covered tax agreement. So a quick exercise here on the screen right now in front of you. मान लीजिए 3 देश हैं A, B और C, और तीनों ने OECD को नोटिफाई किया कि वो अपने कौन कौन सी ट्रीटीज को MLI से अमेंड होने देना चाहते. तो देखिए A ने क्या नोटिफाई किया. A ने क्या कि बॉस मैं अपनी जो C के साथ ट्रीटी है उसको नोटिफाई कर रहा हूं कि वो MLI से चेंज हो जाएगी. D के साथ जो ट्रीटी है उसको भी नोटिफाई कर रहा हूं, F को भी नोटिफाई कर रहा हूं, G को भी कर रहा हूं. देखिए इतनी लंबी लिस्ट लगा दी, उसने B नहीं लिखा. A did not notify that its treaty with B country will be impacted by MLI, and as a result क्योंकि A ने ही मना कर दिया, क्योंकि A ने खुद ही मना कर दिया, इसलिए A और B का जो DTA है it does not become a CT.
राइट। बी के केस में देखते हैं, बी ने ए को नोटिफाई किया, बी ने सी को भी नोटिफाई किया। देखिए बी ने सी को नोटिफाई किया है, बी ने सी को नोटिफाई किया, लेकिन क्या सी ने बी को नोटिफाई किया? सी की लिस्ट में बी नहीं आ रहा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच बी सी ट्रीटी इज ऑल्सो नॉट अ सीटीए। यहां पे मैचिंग हो किसकी रही है? सिर्फ ए की लिस्ट में सी आ रहा है और सी की लिस्ट में ए आ रहा है। ये बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है। ए ने सी के लिए हाँ कर दिया, सी ने हाँ ए के लिए हाँ कर दिया, और इसीलिए ए और सी के बीच का जो ट्रीटी है इट बिकम्स अ सीटीए। देयरफॉर ए और सी की जो ट्रीटी है उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसे पढ़ते टाइम हमें उनकी एमएलआई पोजीशंस को भी ध्यान में रख के पढ़ना होगा। ए और बी की जो ट्रीटी है, बी और सी की जो ट्रीटी है, उसको आप अभी भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे। एक इंटरप्रिटेशन के अंदर जुडिशरी का डिफरेंट व्यू हो सकता है जो हमें ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गया है। आई विल टेक यू थ्रू दैट एग्जांपल एज वेल, बट एटलीस्ट एमएलआई पढ़ते टाइम आपको ए बी ट्रीटी और बी सी ट्रीटी पे एमएलआई लगाने की आवश्यकता नहीं है। Before I proceed from this point onwards, if you have any specific question in what I've explained to you so far, I would want you to raise that question, because this is where I've tried to lay down a foundation, and I would not want to go on without realizing if I've been unable to convey that foundation, to lay down that foundation properly. गौरव जी, Please sir. एक जो अभी आपने एग्जांपल लिया कनाडा का बड़ा अच्छा, और उसको कंपेयर भी किया, Sir. तो उसका जो कवर्ड ट्रीटी है कनाडा की, उसका जो एमएलआई जिसकी सिंथेटाइज्ड टेक्स्ट अवेलेबल नहीं थी, सर आपने उसका जो फाइनल आउटकम निकाला, तो जी। वो एमएलआई क्या कह रहा है उसके लिए, डिविडेंड के लिए? इसको सर, थोड़ा कहे तो एग्जैक्टली वही रहा है जो सर्बिया ट्रीटी भी कह रही है, बट वो देखने के लिए हमें एक बड़े लंबे रूट से जाना पड़ेगा, जिसको मैं आज की जगह कल करना चाहता हूं, क्योंकि अभी जब मैं आपको इस एमएलआई के प्रोविजंस को पढ़ने का आपके साथ बैठ के वो डिस्कशन कर लूंगा तो हम ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। अदरवाइज ये देखिएगा एमएलआई पोजीशन का जो मैंने आपको एरो दिखाया था, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इट टेक्स मी टू द एमएलआई पोजीशंस गिवन बाय इंडिया। ये राइट नाउ जो आप देख रहे हैं, इसका टेक्स्ट ऊपर यूआरएल भी देखिएगा, बेप्स एमएलआई पोजीशंस इंडिया इंस्ट्रूमेंट, कि इंडिया एमएलआई पोजीशंस के अंदर क्या कह रहा है। तो अगर मैं इसमें आर्टिकल 8 पे जाता हूं, दिस इज डिविडेंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, और उस आर्टिकल 8 की लिस्ट के अंदर अगर मैं कनाडा पे जाता हूं, ओके, तो इंडिया ने कनाडा की ट्रीटी में कहा कि हाँ मैं उसके आर्टिकल 10(2)A को एमएलआई से इंपैक्ट होने देना चाहता हूं। और 10(2)A वही आर्टिकल था साहब जो मैंने आपके साथ पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया कनाडा ट्रीटी में लिखा हुआ 15%। वो तो 15% कह रहा है। बिल्कुल सर, तो अभी तो 15% कह रहा है, लेकिन ये जो एडिशनल कंडीशन 365 डेज की है, हाँ, ये लागू करने के लिए इंडिया ने अपनी नोटिफिकेशन में कनाडा का नाम लिख के दे दिया कि हाँ इस आर्टिकल को मैं 365 डेज की एडिशनल कंडीशन से इंपैक्ट होने देना चाहता हूं, और यही काम कनाडा ने भी किया। अब जो आप राइट नाउ देख रहे हैं दैट इज अ कैनेडियन पोजीशन, और कैनेडियन पोजीशन ने क्या किया, कनाडा का भी अगर मैं आर्टिकल 8 पे जाता हूं, ये देखिएगा सर आर्टिकल 8 कनाडा की एमएलआई पोजीशंस आ गई हैं, और उसमें भी अगर मैं देखता हूं तो डिविडेंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन के अंदर यस, ये मैंने इसकी पुरानी वाली लोड कर दिया। लेट मी लोड द न्यू वन। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आपको दोनों देशों की पोजीशंस को डाउनलोड को लोड करके फिर उसे कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, मतलब अभी जो आपने एग्जांपल दिया उसमें कनाडा का जो आउटकम आ रहा है वो सर्बिया के इक्विवेलेंट है। बिल्कुल सर। ओके, तो गौरव जी मेरा भी एक पॉइंट क्वेश्चन था। प्लीज सर। जो 15 एक्शन प्लान इनिशियली जो इसमें प्रोजेक्ट में आए थे जी, उसमें जहां तक मुझे ध्यान आता है कि देयर वर सम एक्शन प्लान्स व्हिच वर मैंडेटरी, वो सबको करने ही थे। बिल्कुल तो सर। जब सबको करने ही थे तो फिर वो एमएलआई में हर एक एमएलआई में क्यों नहीं आया? वेरी गुड पॉइंट सर। एक्चुअली दिस इज समथिंग व्हिच इज अ सेमी पॉलिटिकल इशू आल्सो। अगर आप सोच के देखें कि इतना बड़ा ओईसीडी इनिशिएटिव किया गया, उस ओईसीडी इनिशिएटिव्स के अंदर सारे देशों ने आकर रोना बचाया कि सर हमारे यहाँ से तो देश की चोरी हो रही है, बिकॉज जब हमारे यहाँ से देश की चोरी होती है ना तो बुरा लगता है। तो सब देशों ने उसका बड़ा रोना धोना मचाया, और उसके अंदर एक बड़ा अच्छा जो आपने पॉइंट बोला, उसके अंदर ट्रीटी अब्यूज, जिसे हम ट्रीटी शॉपिंग कहते हैं। ट्रीटी शॉपिंग हर किसी ने बोला, बिकॉज ट्रीटी शॉपिंग रैम्पेंट थी वर्ल्ड वाइड। आपके पास जो इतनी सारी इनवॉइसेज आया करती हैं, वो कई सारे केसेस के अंदर आयरलैंड से आती है। इतना खूबसूरत सा कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस कृषि प्रधान देश में इतने सारे आईपीएस बैठे हुए हैं, कोई सोचेगा वहां तो सारे साइंटिस्ट ही होते होंगे। सर आयरलैंड इज द पंजाब ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जितने प्यारे सीधे साधे लोग पंजाब के हुआ करते हैं, खूब सारे खेती किया करते हैं, और कितनी भी दारू पी सकते हैं,
उसी तरीके से आयरलैंड का है, गिनेस उन्हें आप दोपहर में भी पिला सकते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, बट उनका कोई आईपी डेवलपमेंट में कोई रुचि नहीं है खासतौर से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी इतनी सारी आईपी पेमेंट्स, रॉयल्टीज, इतनी सारी रॉयल्टीज आप आयरलैंड को पे कर रहे हैं, बिकॉज आयरलैंड वाज बीइंग यूज्ड एज अ ट्रीटी शॉपिंग जुरिसडिक्शन। एंड अगर सब देश रो रहे थे इसकी वजह से कि यार ये आयरलैंड ने क्या मचा रखा है बताइए, तो इसकी वजह से जब ये डिसाइड हुआ कि ट्रीटी शॉपिंग को रोकना है, और ट्रीटी शॉपिंग को रोकना है तो उसके लिए AP6 एक्शन प्लान 6 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटी अब्यूज में एंटी ट्रीटी शॉपिंग क्लॉज डाला गया, और वो एंटी ट्रीटी शॉपिंग क्लॉज MLI में भी डाला गया, राइट। तो MLI के थ्रू सब देशों को इसके लिए हाँ करना चाहिए। लेकिन टू ब्रिंग एवरीबडी ऑन बोर्ड, सबसे पहला सवाल तो यही था ना कि क्या हर एक देश MLI को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर कोई देश MLI को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो मिनिमम स्टैंडर्ड विल किक इन, और फिर वो मना नहीं कर सकता। देन एक्शन प्लान 6 एंटी ट्रीटी शॉपिंग मेजर विल अप्लाई टू हिम, व्हिच वी विल डिस्कस। बट अगर कोई देश MLI को ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, सच एज यूएस ने कह दिया बॉस आई एम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, जो करना कर लो, लेकिन आई डोंट एग्री, थैंक यू सो मच। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई प्रोबब्ली यूएस इज डूइंग इट, बिकॉज काफी सारी जगहों पे ऐसा एलिज किया जाता है, आई एम नॉट मेकिंग अ वेरी लोडेड स्टेटमेंट हियर, बस ऐसा एलिज तो जरूर किया जाता है कि आफ्टर ऑल जिन 4 सबसे बड़े कंपनीज को टारगेट करने की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, वही गाफा, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक एंड एप्पल, वो रियल सेंस के अंदर, तो एप्पल के अंदर वो रियल सेंस में तो अमेरिका में लोकेटेड। तो जितने भी आप ट्रीटी अवॉइडेंस के टैक्टिक्स यूज होते हुए देखते हैं, वो आप कई बार सिलिकॉन वैली बेस्ड डिजिटल बिजनेसेस को यूज करते हुए देखते हैं। और अगर यूएस ही अगर इसके लिए एग्री कर जाएगा तो सबसे ज्यादा टैक्स इंपैक्ट नेगेटिव जो पड़ेगा वो यूएस टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ेगा, और इसलिए यूएस इसके लिए नहीं मान रहा। सो आइडियल वर्ल्ड के अंदर, टू आंसर योर क्वेश्चन साहब, सर, आइडियल वर्ल्ड के अंदर तो ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए थी, सभी देशों को इसके लिए एग्री करना चाहिए था। रियल वर्ल्ड के अंदर OECD ने ये ऑप्शन दी है कि भाई हम तो एक देखिए MLI बना के आपको दे सकते हैं, अगर आप फाइनली उसे मानते ही नहीं है तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर सोवरेनिटी एंड वी कांट कंप्लीटली ओवररूल इट। इनफैक्ट इंडिया ने भी एक जगह पे अपनी सोवरेनिटी क्लॉज को इन्वोक करते हुए एक पर्टिकुलर चीज को मानने से मना किया है, which is under Article 14, although that was not a minimum standard. That was not a minimum standard, which is a clause on mandatory binding international arbitration. तो उसी तरीके से अगर कोई देश कहता है मैं MLI साइन ही नहीं करता, जो करना कर लीजिए, तो you can't really help it. But अगर कोई देश MLI साइन करता है, then yes sir, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो उस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे एंड ही कैन नॉट आउट ऑफ इट। देयर इज अ वेरी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी which I'm not boring you with, जिसको एक क्लॉज को यूज करके मिनिमम स्टैंडर्ड से ऑप्ट आउट किया जा सकता है, बट उसके अंदर एक हायर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है जिसमें आप ये प्रूव कर पाए कि जो बात मिनिमम स्टैंडर्ड मुझे करने के लिए कह रहा है वो बात तो सर मेरी ऑलरेडी ट्रीटी में लिखी हुई है, एग्जिस्टिंग में, और वो आपको क्लॉज नोटिफाई करना पड़ेगा कि देखिए इस क्लॉज में बात लिखी हुई है और उतनी जहमत किसी ने नहीं उठाई है, इसलिए मिनिमम स्टैंडर्ड हर कोई फॉलो करेगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो सबसे पहले MLI साइन करने के लिए तैयार हो। गौरव जी, एक छोटा सा बेसिक और जो आपने आज बहुत फंडामेंटल स्टार्ट किया, जैसे अभी हम एक बात कर रहे थे कि DTA को रीनेगोशिएट करना डिफिकल्ट है और MLIs को साइन करना इजी है सर। तो अब आप ये देखिए, क्योंकि MLIs तो दोनों पार्ट पे साइन होगी, तो इसका क्या हम ये कह सकते हैं कि MLIs इसलिए इजी है क्योंकि वो यूनिलेटरल हैं और DTA इसलिए टफ है क्योंकि वो बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट है? MLI मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इनफैक्ट मेरा बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया आपने। मेरा सवाल ये भी है कि इतना जो MLI को हम सिंथेटाइज टैक्स निकालेंगे और उसको कोरिलेट करेंगे, फिर हम एक्ट के प्रोविजन पे जाएंगे और एक्ट में बेनिफिशियल जो है उसको देखेंगे, तो DTA का करेक्ट अमेंडमेंट या रीनेगोशिएशन भी एक ऑप्शन हो सकता था कि थोड़ा सा बस बताएं सर। तो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ट्रीटीज जो नॉर्मल DTAs होते हैं वो तो बायलैटरल होते हैं। MLI का नाम वैसे तो देखिए मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट, इट्स एन MLI, इसका मतलब सारे देशों को एक साथ करना है, लेकिन जो अच्छी चीज हुई वो ये हुई सर कि ये डेवलप तो मल्टीलेटरली हुआ, लेकिन जब एक बार डेवलप हो गया और उस डेवलपमेंट के अंदर भी सबसे ज्यादा जो आयरन फिस्ट रही वो OECD एज अ नॉन पार्टिसान एंटिटी की रही। OECD ने कहा कि बॉस अगर हम तुम लोगों पे छोड़ देंगे कि तुम सारे के सारे एक रूम में बैठ जाओ और आपस में नेगोशिएशन करते रहो, तो वो तो फिश मार्केट बन जाएगा। और उसकी जगह OECD ने अपने आप एक बड़ा ही इम्पार्शियल सा ड्राफ्ट शुरू में बनाया और वो प्रेजेंट किया, और उसके बेसिस पे और कंट्रीज ने आपस में इस MLI के ड्राफ्ट को परफेक्ट करने का काम किया। लेकिन जब एक बार ये काम हो गया, एक बार MLI का ड्राफ्ट इवॉल्व हो गया, उसके बाद यस
उसे साइन करने का काम जो था, एक एक देश के फाइनेंस मिनिस्टर को उड़ के जाना था, उसे साइन करा था. हमारे केस में जेटली साहब उठ के गए और उन्होंने उसे साइन किया. एंड देयरफॉर टू दैट एक्सटेंट the part of development of the MLI was multilateral, but once it was there, the only task which was remaining was to sign it. And therefore, Rohit, I agree with you that to that extent, it made the job of MLI a bit faster. वैसे भी अगर आप देख लीजिए कि क्लास के अंदर अगर कोई मॉनिटर होता है या क्लास टीचर होती है, तो काम ज्यादा अच्छे रेगुलेटेड तरीके से होता है. अगर आप सिर्फ 2 जनों के बीच में क्लास प्रोजेक्ट छोड़ दे तो वो शायद इसके अंदर एक जिंदगी निकाल देंगे. लेकिन अगर आप 10 जनों के बीच में क्लास प्रोजेक्ट रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर टॉप पे एक मॉनिटर या क्लास टीचर बैठा दें, तो पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है. Right? So probably that was the reason why MLI could achieve a faster outcome. That is why. एक मेरा भी पॉइंट था. Sir. जब MLI दोनों कंट्रीज ने एग्री कर लिया, तो इट इज एज गुड एज अमेंडेड डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट. Sir. So as a part of ease of doing business, why can't tax authorities of each country virtually come out with a revised, amended double tax avoidance agreement? Why taxpayer has to go through this exercise which you are just trying to explain? It is nothing but a amendment. It is. Like if you look at in RBI and all, so many regulations are there. As and when it is amended, the amended version is always available. So why our government don't want to do that? Firstly, the answer can be best given by government, but I believe कि synthesized texts are under development, sir. In fact, OECD ने भी ये चीज बोली कि हम encourage कर रहे हैं कि हर एक देश अपने synthesized text बनाए. Although synthesized text के अंदर अगर आप कोई गलती कर देंगे तो वो responsibility तो उस देश को या उसके taxpayer को ही उठानी पड़ेगी. OECD का काम था कि बॉस मैं तो most authoritative text को अपने depository, और वो depository OECD खुद है, वो साइन डॉक्यूमेंट में अपने पास रखूंगा, जो कि हर देश ने अपनी अपनी एमएलआई पोजीशन दी है. बट राइट सर, आइडियली स्पीकिंग हर कंट्री को अपने सिंथेसाइज्ड टेक्स्ट एग्जॉस्टिवली एक्यूरेटली डेवलप करने चाहिए. कुछ एक कंट्रीज में तो और ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑफर किया कि वी विल डेवलप द सिंथेसाइज्ड टेक्स्ट फॉर यू, बट ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि एक प्राइवेट प्लेयर बीच में आ जाता है, तो इसलिए देयर कुड बी अ हेजिटेशन अराउंड इट. बट इट्स नॉट रॉकेट साइंस. आई बिलीव दिस इज समथिंग which should be easily implementable with some good amount of people working on this thing. And I would not be surprised if, yes, really we see all these synthesized texts which have incorporated within the treaty the MLI provisions to be there in place for all the countries which are opting for MLI. Ek point or MLI is not static, sir. MLIs will keep on evolving in the sense that, point number one, more countries will sign and ratify the MLI, because of which more Indian treaties will get impacted by MLI. That's point number one. Point number two, even MLI allows कि अगर एक कंट्री ने MLI के अंदर पहले एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अग्री किया था, तो वो फ्यूचर में उस पोजीशन को चेंज करके एक मोर स्ट्रिंजेंट पोजीशन के लिए अग्री कर सकता है. इट कैन नॉट रिलैक्स इट. MLI says कि अगर आज आपने एक पर्टिकुलर लेवल के ऑप्शन को एक्सरसाइज के लिए करते हुए हाँ कर दिया है, तो फ्यूचर में आप और हायर थ्रेशोल्ड पे अगर आप जाने के लिए तैयार हैं, तो यू कैन चेंज योर ऑप्शन. आप उसे आसान नहीं बना सकते हैं. देयरफॉर इट इज पॉसिबल दैट जो आज सिंथेसाइज टेक्स्ट बनाओ, वो सिंथेसाइज टेक्स्ट ऐसे किसी चेंज की वजह से वैलिड ना रहे. इसलिए दिस विल हैव टू बी अ कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग, कॉन्स्टेंटली डायनेमिक काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज. But it's not something which cannot be done. I think it is something which is waiting to be done. आसान क्यों नहीं बना सकते? Why that logic? Because शायद मैं इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहूंगा सर, कि अगर मैं ये सोचूं कि मैंने एक पर्टिकुलर कंट्री का एमएलआई का ट्रीटी प्लस एमएलआई देख लिया. गौरव जी, हम यही एग्जांपल लेते हैं आपका जो अभी डिविडेंड क्लॉज का है. सर, आज हमने डिसाइड किया कि 365 दिन है. Maybe later on, because of circumstances, we decide कि कनाडा के साथ ये हमें 365 देखना नहीं है. We want to go back to any day type. So वो क्यों नहीं कर सकते? Well, firstly, तो OECD has not allowed it. But why has OECD not allowed it? Is, in my guess, because अगर ये मैं allow कर दूंगा ना सर, तो देश जो है वो इतने शैतान या बदमाश होते हैं कि वो आज की तारीख में तो MLI की हाई पोजीशन अग्री कर जाएंगे, लेकिन बाद में सारे के सारे एक एक कदम पीछे हट जाएंगे. नियरली क्या हुआ करता है मेरे अपने ऑफिस में, जब मैं किसी भी अपने टीम मेंबर्स को कहा करता हूँ कि चलो एक काम करो, एक बढ़िया सा आर्टिकल लिखो, तो 4 जने अग्री तो कर जाते हैं मैं आर्टिकल लिखूंगा, और वो शुरू में जब बोलते हैं ना आर्टिकल लिखेंगे, तो टॉपिक क्या पिक करते हैं? पोएम, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट,
यू नो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, लेकिन बाद में मैं कहता हूँ अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा आराम से कुछ सिंपल वाला लिखना तो कर लेना। तो 90% लोग कहते हैं सर जो 194 जे में चेंज आया वो वाले पे लिखने क्या, राइट? सो माय पॉइंट इज if you allow people to later on opt for an easier threshold, then probably it may end up diluting the entire exercise. But point is that this is a mutual understanding, mutual agreement. So if both the countries agree to a particular stand, right, whether it is relaxing or making it more stringent, right, I mean, agreement should allow that. It's a thought process. I'm not saying it is right or wrong. Presently MLI does not allow it. Presently MLI कहता है कि आप एक higher threshold के लिए agree कर सकते हैं। I have a question from Mr. Manish Agarwal. It says if any country signs MLI, then do we have to still see the synthesized text for that country to check deviation? Firstly, you will see, Manish, the synthesized text, and then you should see the MLI position to check the deviation. So आपकी हाथी की पूंछ synthesized text है, but as I mentioned, it is not necessarily the most accurate thing to see, and therefore you should then after that see the MLI text, MLI position text as well if you are issuing, say, a written opinion or a 15 CB. So the answer to that is yes, you have to see both if they are available. Don't just stick to one. I hope I've addressed your question. So we have understood the initial mechanics of how a DTAA evolves into a CTA, how a treaty will become subjected to an MLI as well. But there are more mechanics too. तो हमने CTA तो समझ लिया क्या है, और मिनिमम स्टैंडर्ड जो अभी अनिल सर ने पूछा था, ये वही मिनिमम स्टैंडर्ड है कि अगर OECD को लगता था और जो से लगा कि भाई कुछ चीजें तो ऐसे जिसपे नो नेगोशिएशन शुड हैपन, जिसपे कोई बिकरिंग नहीं होनी चाहिए, ये तो हर किसी को अग्री करना चाहिए, तो उन्हें हम मिनिमम स्टैंडर्ड बोला करते हैं। MLI के अंदर भी दो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, एक एक्शन प्लान 6 जो कि ट्रीटी शॉपिंग के अगेंस्ट है, दूसरा एक्शन प्लान 14 जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के रिलेशन में है, एंड वील टॉक अबाउट देम। AP6 के लिए आई एम होपिंग विल बी एबल टू टच अपॉन इट टुडे। AP14 में probably something which may have to take it tomorrow. Then if one agrees for signing the MLI, then these minimum standards will apply to all countries. इसमें ऑप्ट आउट करने की ऑप्शन नहीं है, लेकिन इट ऑल्सो मीन्स, इससे हमें एक आइडिया पता चलता है कि इसका मतलब अगर कोई नॉन मिनिमम स्टैंडर्ड आर्टिकल है, कोई नॉन मिनिमम स्टैंडर्ड क्लॉज है, तो देश उससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अगेन इसके बारे में भी सोचा जाए तो थोड़ा सा ये लग सकता है कि यार इतनी बड़ी MLI बनाई भी और तुमने लोगों को ऑप्टिंग आउट की भी ऑप्शन दे दी। हाँ, अगेन वही प्रॉब्लम है कि बिकॉज कुछ एक चीजें जो कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल थी उनको तो मिनिमम स्टैंडर्ड में डाल दिया गया, उसके बावजूद भी कई देशों को कहा गया कि भाई अगर कुछ चीजों पे तुम्हें बिल्कुल ही इनफ्लेक्सिबिलिटी रखनी है तो उन क्लॉजेस से तुम ऑप्ट आउट कर सकते हो जो कि नॉन मिनिमम स्टैंडर्ड है। उन्हें ऑप्ट आउट करने के लिए टेक्निकल लैंग्वेज हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए रिजर्वेशन दे देना। सो बेसिकली अगर इंडिया गिव्स अ रिजर्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर क्लॉज, देन दैट मींस इंडिया इज सेइंग I don't want that clause of the MLI to apply to this treaty, although this treaty is a CTA. Therefore, what will happen is, मेरे मल्टीपल CTAs के अंदर it is possible कि एक CTA के अंदर इंडिया ने एक पर्टिकुलर क्लॉज को रिजर्वेशन की तरीके से दे दिया और दूसरे में ना भी दिया, as a result of which even CTAs will start looking different from each other in respect of the same change, right? Dividend transfer exemption के केस के अंदर it is therefore possible कि US में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि US ने साइन नहीं करी, नीदरलैंड के अंदर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नीदरलैंड के अंदर ये क्लॉज नोटिफाई नहीं किया, और सर्बिया में हो भी गया। Therefore, एक ही क्लॉज मल्टीपल तरीके से अप्लाई कर सकता है in different scenarios because of different reservations given by them. Okay, AP6 stands for Action Plan 6 and AP14 stands for Action Plan 14. AP essentially is the action plan, 15 action plan जो मैंने आपको show किया। My point was just to explain what is required under this particular AP6. अच्छा, oh sorry sir, I will be coming to that specifically. In fact, AP6 तो हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे सर। AP14 तो फिर भी एक फिलोसॉफिकल चीज है जो कि सरकार को करना है, बट AP6 ऐसा है जो आपको और मुझे, हम सबको डायरेक्टली इंपैक्ट करता है इन आवर ओपिनियंस एंड डिसीजन मेकिंग। दैट इज समथिंग वी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अपॉन। Like I said कि you can opt in and opt out of the treaties, you can opt in and opt out of the clauses of the treaties, ये दोनों चीजें पॉसिबल है। एक और भी पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको कई जगहों पे एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि हमें एक पर्टिकुलर चेंज तो आपकी ट्रीटीज में ला रहा है, लेकिन इस चेंज को लेके हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं। मेन्यू के ऊपर आपके पास दो आइटम्स है, आप ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से कोई भी पिक कर लीजिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, उस एग्जांपल को हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे।
there's something called preparatory और auxiliary activities. जब हम परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं कि एक फॉरेन एंटरप्राइज की इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट बन सकती है वैसे तो, लेकिन अगर इंडियन ऑफिस बड़े चिल्लर से छोटे छोटे मोटे से काम कर रहा है, which are just preparatory activities, just auxiliary activities, तो preparatory और auxiliary activities करने की वजह से, merely सिर्फ preparatory और auxiliary activities करने की वजह से आपकी इंडिया में पी क्रिएट नहीं होती। और इसी वजह से देखा जाए तो अगर एक लाइजन ऑफिस एक फॉरेन कंपनी इंडिया में है भी, तो देखा जाए तो ऑफिस है और ऑफिस तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, बट क्योंकि लाइजन ऑफिस प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटी करता है इसलिए उन्हें पीई जनरली नहीं माना जाता। लेकिन इस क्लॉज का अब्यूज किया जा रहा था और उस अब्यूज को रोकने के लिए दो ऑप्शन दी गई कि या तो आप अपने ट्रीटी में ये पर्टिकुलर ऑप्शन ए के लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए या ऑप्शन बी की लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, और दोनों का मतलब अलग होगा। ऑप्शन ए का मतलब तो ये होगा कि अब्यूज टोटली रुक जाएगी, और ऑप्शन बी के अंदर जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे उसके अंदर पता चलेगा कि ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन को चेंज नहीं किया जा रहा, उसे स्टैटिक रखा जा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन को, एडिशनल एक्टिविटीज को जो ज्वाइन किया जाएगा उनके बारे में एक डिफरेंट पोजीशन ली जा रही है। सो द पॉइंट दैट आई विल कन्वे टू यू इन मोर डिटेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट टुडे इटसेल्फ, and the point that I'm trying to give you in some shape in summary today right now is that यहां तक भी ऑप्शन दी गई है कुछ एक क्लॉजेस में कि आपको ऑप्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। सर हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, आप इन दोनों में से किसी भी एक को चूज कर लीजिए, राइट। सो अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं जरा एक बार सोच के देखते हैं। एक, आप ट्रीटीज से ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बी, आप ट्रीटीज में ऑप्ट इन करके एक पर्टिकुलर क्लॉज से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। सी, आप एक पर्टिकुलर क्लॉज में भी अगर दो ऑप्शन दी गई हैं तो उन ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन बी कोई भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड अगेन, अगर आपने ऑप्शन ए एक्सरसाइज करी और मैंने ऑप्शन बी एक्सरसाइज करी, फेलियर। एंड अगेन क्लासिकल एग्जांपल फॉर दिस इज इंडिया सिंगापुर ट्रीटी, जो मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटीज एग्जेम्पशन का, उसमें सिंगापुर ने इस पूरी कहानी के अंदर ऑप्शन बी एक्सरसाइज करी, हमने ऑप्शन ए एक्सरसाइज कर दी, क्योंकि क्लैश हो गया जो आजकल हम महाभारत में देखते हैं या रामायण में देखते हैं कि एक तरफ से एक अस्त्र उड़ता हुआ जा रहा है, दूसरे तरफ से दूसरा अस्त्र उड़ता हुआ जा रहा है, वो क्लैश होके पुफ उड़ जाते हैं, राइट। उसी तरीके से क्योंकि सिंगापुर ने ऑप्शन बी एक्सरसाइज करी, इंडिया ने ऑप्शन ए एक्सरसाइज करी, इसलिए वो न्यूट्रलाइज हो गई, एक्चुअल में ट्रीटी में कोई चेंज सर आया है। So I'll give you this example in more detail when we are talking about it. Right now we are only talking about the mechanics, or actually the way I put it is right now we are talking about the jargon. For instance, the jargon called compatibility clause. अब ये compatibility clause का अर्थ क्या है, क्या मतलब? Basically, compatibility clause का मतलब ये है कि how will the MLI clause fit into the treaty? It can fit into the treaty in 4 different ways. What are the 4 ways? एक तरफ आपकी MLI है, दूसरी तरफ आपका एग्जिस्टिंग ट्रीटी। एमएलआई का क्लॉज या तो एग्जिस्टिंग ट्रीटी के क्लॉज को टोटली रिप्लेस कर देगा, विच मींस इन प्लेस ऑफ। रिप्लेस करने के लिए आप यानी कि प्री सपोज कर रहे हैं कि दूसरी ट्रीटी के अंदर इस बात पे एक ऑलरेडी क्लॉज है, क्योंकि अगर क्लॉज है तभी उसे रिप्लेस किया जा सकता है। अगर क्लॉज है ही नहीं और वहां पे एक नया क्लॉज इनकॉर्पोरेट करना है तो आप क्या यूज करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ। तो कुछ देशों ने कहा कि बॉस अगर मेरी एग्जिस्टिंग ट्रीटी के अंदर एक क्लॉज है ही नहीं तब तो एमएलआई के क्लॉज को मैं इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हूं, वहां पे तो इन एब्सेंस ऑफ लगेगा। कुछ देशों ने उससे हाई थ्रेशोल्ड रखी कि जो क्लॉज है वो भी गया भाड़ में, मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं एमएलआई क्लॉज। कुछ देशों ने बिल्कुल ही सॉफ्ट सी पोजीशन ली कि यार रिप्लेस नहीं करते, उसे थोड़ा सा बस चेंज कर देते, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते। दिस इज द लीस्ट फेवरेट, आप देखेंगे बहुत ज्यादा जगहों पे यूज नहीं हो रही है। और जो मोस्ट अग्रेसिव ऑप्शन है वो ये है, अगर वहां पे क्लॉज था तो चेंज हो गया और नहीं था तो वहां फिर भी आ गया। दैट इज अ ब्रह्मास्त्र। अगर एग्जिस्टिंग ट्रीटी के अंदर कोई क्लॉज एक पर्टिकुलर ट्रीटी अब्यूज को लेके था ही नहीं, एक पर्टिकुलर बेप्स को लेके था ही नहीं, वो मिसिंग था, तो भी एमएलआई का क्लॉज उसमें जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और अगर वो क्लॉज ऑलरेडी था तो एमएलआई का क्लॉज, नया वाला क्लॉज आके इसे डिलीट करके अपनी जगह बना लेगा। सो दिस द लास्ट ऑप्शन, इन प्लेस ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ, is the most powerful way of saying that I want to completely change what's written in my existing treaty with what is written in the MLI. देखा जाए तो these are the natural English meaning interpretations, but these are to be explained specifically because हमें इन चीजों का ना ध्यान रखना पड़ेगा। कई जगहों पे इस लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, because there is a particular example जहां पे एक दूसरी कंट्री ने कहा कि हम MLI के क्लॉज को अपनी ट्रीटीज में इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार है जहां पे इन एब्सेंस ऑफ है। तो उसे देख के एकदम से लगता है कि अच्छा एमएलआई का क्लॉज शायद इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इंडिया ट्रीटी में। द प्रॉब्लम इज उस इंडिया ट्रीटी में उस चीज को लेकर ऑलरेडी क्लॉज एग्जिस्ट करता है।
अगर क्लॉज ना करता होता तो एमएलआई क्लॉज इनकॉर्पोरेट हो जाता, बिकॉज उन्होंने कौन सा कंपैटिबिलिटी क्लॉज यूज किया, इन एब्सेंस ऑफ। लेकिन उस इशू को लेकर ऑलरेडी क्लॉज एग्जिस्ट करता था, ऑल्दो वो क्लॉज वीक क्लॉज था, बट क्लॉज तो है ना, चाहे वीक ही सही। तो ऐसे में बिकॉज उन्होंने इन प्लेस ऑफ की ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी, उन एब्सेंस ऑफ की ऑप्शन एक्सरसाइज करी है, इसलिए वो क्लॉज रिप्लेस नहीं होता। एंड when we'll read through it, then probably we'll get a further grasp over these issues. From this point onwards, I think we will start looking at the MLI in greater focus. MLI के कुल मिला के सर 7 हिस्से हैं। उन 7 हिस्सों में के अंदर essentially इन एक्शन प्लान्स को ज्यादा फोकस में रखा जा रहा है। एक्शन प्लान 6 एंड एक्शन प्लान 14 जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे आ रहा है, जो भी हमने डिस्कस किया, दीज आर मिनिमम स्टैंडर्ड। एक्शन प्लान 7 इज फॉर आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट स्टेटस, जहां पे एक फॉरेन एंटिटी इंडिया में पी से बचने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करती है। उन स्ट्रैटेजीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अवॉइडेंस ऑफ पी स्टेटस के लिए, ट्रेड अब्यूज के लिए कुछ चेंजेस लाए गए हैं। और वो कौन से हैं वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी एज हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि as such 26 countries have already ratified the MLI, apart from those 26 countries are the ones जिनका इंडिया के साथ ट्रीटी है। वैसे तो बहुत सारों ने रेटिफाई किया है, इंडिया के साथ जिनकी ट्रीटीज है, अब 26 कंट्रीज ने ट्रीटी रेटिफाई कर दिया। देखो 26 ट्रीटीज ऑलरेडी 1 अप्रैल 2020 से MLI से इंपैक्ट हो चुकी हैं, और उनमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूके, यूएई है। जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज इसमें मिसिंग है वो मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूएस। ऑब्वियसली ये ट्रीटीज इस लिस्ट में मिसिंग है बिकॉज इन्होंने या तो ट्रीटी साइन नहीं करी या ट्रीटी साइन करी है तो इंडिया को ऑप्ट इन नहीं किया। तो इसकी वजह से इंडिया की ट्रीटीज इन कुछ कंट्रीज के साथ अफेक्ट नहीं हुई, लेकिन जो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड में आपको दिखाया था, इनके साथ अफेक्ट हो गई है। प्लीज डोंट थिंक ऑफ दिस एज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बिकॉज ये लिस्ट चेंज होती रहेगी, ये लिस्ट अपडेट होती रहेगी एज मोर एंड मोर कंट्रीज रैटिफाइड। गौरव जी, सर, यू आर हियरिंग मी? आई कैन हियर यू सर। ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी? जो लिस्ट सर, आप कह रहे हैं 26 की है कंट्रीज जी, की, हाँ ये अपडेट होती रहेगी। इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी और वेरीफाई कैसे हुई? सर, कहाँ से कर पाएंगे? the only authorized link for this is the OECD link, और वो आप याद भी रख सकते हैं, इतना छोटा सा है, उसका नाम है oe.cd/mli, राइट। अदरवाइज जो मैंने पीछे लिंक दिया था उसी लिंक के अंदर एक स्टेप और ऊपर जाके, वो मैं आपको अलग से इस चैट पे भी शेयर कर देता हूं। थोड़ा अलग से ईमेल एड्रेस, मेल्स बता देंगे तो देख लेगा कहीं से। हाँ सर, बिल्कुल। साइट्स बता दें हमें, साइट्स बता देंगे तो इजी रहेगा सबके लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। दिस इज द आपने तो क्लिक कर दिया, आपको इजी था, बाकियों को पता नहीं लगेगा जब तक डिटेल नहीं होगी। हाँ, तो मैंने अभी चैट पे तो डाल ही दिया ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सके, और मैं अब इसको अपने ब्राउजर में भी ओपन करके दिखा रहा हूं। मैंने ब्राउजर में यही लिखा सर, oe.cd/mli, और एंटर मार दिया। दिस इज अ शॉर्टकट लिंक, और यहां पे देखिएगा सबसे जो टॉप पे लिंक आ रहा है वो आ रहा है सिग्नेटरीज एंड पार्टीज MLI पोजीशन। जब मैं इसे क्लिक करता हूं तो मेरे पास लेटेस्ट एग्जिस्टिंग पोजीशन निकल के आ जाती है। ये पोजीशन जो अभी आप राइट नाउ देख रहे हैं, दिस इज द स्टेटस एज ऑन 28 फरवरी 2020। उसके बाद से लेके अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। अंडरस्टैंडेबली इस वक्त लोग और ज्यादा बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, और उसमें कौन कौन सी कंट्री ने कौन सी तारीख को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन इज रियली द इंपॉर्टेंट स्टेप, रैटिफिकेशन को OECD के पास जमा करा दिया। OECD डिपॉजिटरी है इस पूरी कहानी का, तो जमा करा दिया, उसकी तारीख भी दे रखी है, और उसकी वजह से एंट्री इनटू फोर्स कब हो रहा है वो आ जाता है। एंट्री इनटू फोर्स से एंट्री इनटू इफेक्ट कैसे निकालते हैं, we'll talk about it in tomorrow's sessions। बट ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है। अभी तक अगर हम टोटल देखें तो इस लिस्ट के अनुसार कुल मिला के 94 देश, 94 कंट्रीज ने MLI को एक्सेप्ट किया है, रेटिफाई किया है। इन 94 में 94 के 94 जो है उनकी वजह से इंडियन ट्रीटीज 1 अप्रैल 2020 से इफेक्ट नहीं हो रही है, बिकॉज कईयों ने तो रेटिफाई करी है। देखिए यूरुग्वे ने अपने जो रेटिफिकेशन दिया है वो खुद 6 फरवरी 2020 को दिया है, तो इसका तो एंट्री इनटू इफेक्ट जो है वो अगले साल आएगा। लेकिन 23 से 26 देश जो है उनके इंडियन ट्रीटीज ऑलरेडी इंपैक्ट हो चुकी है, और वो हमें इनके अंदर इंडिविजुअली जाके देखना पड़ता है। तो वो उसकी लिस्ट एग्जॉस्टिवली OECD के साइट पे भी नहीं, तो वो आपको एक एक को ट्रैक करना होगा, वहां से निकल के आएगा। तो टोटल लिस्ट इज ऑन दिस वेरी वेबसाइट। गुरुजी जी, जैसे 26 की लिस्ट निकाली थी, वो कैसे निकाली यहाँ से आपने?
सर वो एक एक को क्लिक करके एक क्लिक करते हैं आ रहा है तो मतलब कंसोलिडेटेड फिगर डिटेल नहीं है ना कहीं पर भी। नहीं, ऐसा कोई अथॉरिटेटिव अगर आप देखेंगे तो नहीं है। ऑल्दो सीबीडीटी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ मैसेज देता है, बट वो सर्कुलर्स नहीं होते। तो अगर आप देखेंगे तो कभी कभी ट्वीट्स पे आते रहते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स आम चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कैसे 26 की लिस्ट आपने जो लिस्ट दी हमें, इसको अपडेट कैसे करें और कैसे चेक करें, वो थोड़ा गाइड कीजिए हमें। बलदेव जी, इसमें सीबीडीटी प्रेस रिलीज देती है, एज एंड व्हेन दे साइन एंड दे एग्री दे इशू प्रेस रिलीजेस। और इनफैक्ट उसकी वेबसाइट पे जो जिसका सिंथेसाइज्ड टेक्स्ट बन गया है वो अवेलेबल भी है सीबीडीटी की साइट पर। हाँ, बट और जिनका सिंथेसाइज्ड टेक्स्ट नहीं है उनके लिए आपको सर एक एक, जैसे अभी एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ, यूरुग्वे के ऊपर क्लिक करता हूँ, और अगर मैं यूरुग्वे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यूरुग्वे की जो एमएलआई पोजीशन है वो आ गई है। और उन एमएलआई पोजीशंस के अंदर उसने सबसे पहले इंडिया के लिए क्या कहा कि वो इंडिया के साथ जो ट्रीटी साइन करके बैठा हुआ है उसको वो अमेंड करने के लिए तैयार है। द आंसर टू दैट इज यस। उसने इस लिस्ट के अंदर 7वें पॉइंट के ऊपर इंडिया को नोटिफाई किया है। ये देखिएगा 7वें पॉइंट के ऊपर इंडिया हाईलाइट आ रहा है। तो उसने इंडिया को नोटिफाई किया है कि हाँ, मेरी जो इंडिया के साथ ट्रीटी है जो कि 2011-2013 की तारीखों पे साइन और एंट्री टू फोर्स हुई थी, मैं उस ट्रीटी को एमएलआई से इंपैक्ट होने देने के लिए तैयार हूं। देयरफॉर इंडिया ने तो वैसे ही सबको नोटिफाई किया, तो इसकी वजह से इंडिया यूरुग्वे ट्रीटी भी इस लिस्ट में ऐड तो हो जाती है, लेकिन वो 23 की लिस्ट में ऐड नहीं होती, बिकॉज ये 1 अप्रैल 2020 से नहीं एप्लीकेबल होगा सर, ये अगले साल से एप्लीकेबल होगा। तो एक एक ट्रीटी की एमएलआई पोजीशंस पे जाके हम चेक किया करते हैं। जब दिखता है कि हाँ इसने भी इंडिया को ऐड कर दिया तो हम उसे अपनी लिस्ट में जोड़ दिया करते हैं। गौरव जी, notification is sufficient or there has to be some further agreement also? Sir, nothing further is required, unlike in the case of a treaty जिसके अंदर एक notification is mandatory। इस केस में notification of the MLI has already been done। Now individual treaty की ratification की notification की भी जरूरत नहीं, so even that is not anymore required। Moving back, अगर मैं अब एमएलआई का जो टोटल ब्रेकअप है, अभी हमने उसके 7 हिस्से देखे थे, मैं उन 7 हिस्सों के अंदर थोड़ा सा और नीचे जूम इन कर रहा हूं और उसके बाद और डिटेल में लेके जाऊंगा। उसके 7 हिस्से जो हम देख रहे हैं, इनमें आप देखेंगे कुछ एक पार्ट्स को मैंने बोल्ड किया हुआ है, जैसे पार्ट 3 ट्रीटी अब्यूज, जैसे कि पार्ट 4 अवॉइडेंस ऑफ पीई स्टेटस। मेरे हिसाब से ये वो 2 हिस्से हैं जो आपको और मुझे एज टैक्स प्रैक्टिशनर्स एंड टैक्स पेयर्स सबसे ज्यादा इमीडिएटली इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें क्या बातें की गई है। इनके अंदर ट्रीटी अब्यूज को रोकने के लिए कुछ एक क्लॉजेस डाले गए हैं, जिसकी वजह से कई सारी ट्रीटीज जिन्हें हम अभी तक आराम से अप्लाई कर दिया करते थे, अब वो ट्रीटीज हम अप्लाई शायद ना भी कर पाए। डिविडेंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, जिसके बारे में अभी हमने सर्बिया की ट्रीटी, कनाडा की ट्रीटी का कंपैरिजन करके देखा था, वो इसके अंदर है। एंटी अब्यूज रूल फॉर पी जो हम आज डिस्कस करेंगे, जहां पे एजेंसी पी को प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटीज की एग्जेम्पशन को मिसयूज किया जाता था, वो हम इसके अंदर देखेंगे। यहाँ पे भी आर्टिकल पार्ट 4 में भी हम प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी एक्टिविटीज की अब्यूज को देखेंगे। एजेंसी पी के जो क्लॉजेस का मिसयूज किया जाता था उसको देखेंगे। पार्ट 5 अगर देखेंगे आप, इसी तरीके से पार्ट 1 और 2 आप देखेंगे, ये मैंने हाईलाइट नहीं किए और उसका कारण है ये आपको और मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करते। पार्ट 1 के अंदर जो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 है वो किसी भी लॉ के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की तरीके से है। सेक्शन 1 सेज इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया डोमेस्टिक लॉ के अंदर, और यहाँ पे स्कोप ऑफ एमएलआई इट अप्लाइज टू ऑल दी कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट्स। इसी तरीके से जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशंस होती है, यहाँ पे आर्टिकल 2 डेफिनेशंस है। पार्ट 2 व्हिच अप्लाइज टू हाइब्रिड मिसमैचेस, इंडिया ने उस हाइब्रिड मिसमैचेस को बहुत ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दिया बिकॉज इंडिया को ऐसा लगा कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो वील टच अपॉन इट, बट रियली ये बहुत ज्यादा हमें इमीडिएटली इंपैक्ट हर केस में करेंगे ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में जरूर करेंगे। पार्ट 3 समथिंग दैट विल डिस्कस इन डिटेल। पार्ट 4 which we'll immediately discuss after this slide, which will impact us most importantly. Part 5, as I mentioned, these are also more of like philosophies for countries to follow. MAP, corresponding adjustment, arbitration, these are the philosophies for countries to follow. Therefore these are something जो हम डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, बिकॉज ये आपके और मेरे डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। I've got a question. Any example of hybrid mismatch? Okay, let's take it up tomorrow when we are talking about hybrid mismatches. There are examples. Hello. There are examples to it, but let's take it up tomorrow. Can you listen me? I can hear you. Who's that? Is that Shweta? Yeah, this is Shweta. Hi, Gaurav. Hi, Shweta. Hi. गौरव, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि आपने बोला स्कोप जो है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन कवर सीटीए, बिकॉज आई थिंक सीटीए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और मतलब बेसिक वही है। अगर आपको देखना है कि
DTA amend हुआ है कि नहीं हुआ. So first of all, everyone has to understand कि what is CTA. Right. So I would suggest कि CTA आप थोड़ा सा explain कर दीजिए, so that might help to understand कि DTAs कौन-कौन से cover हो जाएंगे. अच्छा, I'm guessing श्वेता आप I'll be happy to repeat it, but मुझे लगता है मैं ये already इस वाली slide में discuss कर चुका हूँ. Is this something which I was unable to convey? तो I'll be happy to repeat it. Okay. Actually, my connection got break up in between, so if you have covered it, it's fine. I hope I have conveyed it to everybody's satisfaction. I gave a few examples here. Okay, then but it's if okay. required, I'll be happy to repeat it. You know, just let me know. No, I think I missed that part because my connection was not working in between. No problem. It's fine. Thank you. Thanks. So, gentlemen, we had reached here. जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अब हम कौन-कौन से आइटम्स के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करेंगे आज और कल भी इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. Firstly, we will talk about part 4. Part 4 is about avoidance of PE status. वैसे भी हम जानते हैं सर, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स के अंदर जो सबसे बड़ा हुआ होता है तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ही होता है. तो आइए उस हुए को लेके लोग कैसे बचने की कोशिश करते थे और उनको कैसे प्लग करने की कोशिश की गई है थ्रू MLI. इनमें से कुछ एक चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी डोमेस्टिक लॉ में भी चेंजेस होते हुए देख लिए हैं, तो इसीलिए इट इज पॉसिबल दैट यू मे फाइंड दैट ये आप ऑलरेडी फाइनेंस बिल की कुछ पुरानी अमेंडमेंट्स के अंदर देख चुके हैं और हो सकता है therefore to that extent ये recap हो. So let it be a good opportunity to recap and relearn. Permanent establishments के अंदर one of the most important form of permanent establishment is actually agency P. More important than fixed place P. Why more important than fixed place P is because देखिए सर, fixed place P के अंदर तो एक कंपनी खुद का एक ऑफिस यहाँ पे खोलती है, लेकिन एजेंसी P के अंदर उसका सिर्फ एक एजेंट बैठा होता है और उस हो सकता है उस एजेंट का नाम उस कंपनी के नाम से मैच भी ना खाता. वो एजेंट इंडिया में बैठ के कुछ एक एक्टिविटीज कर रहा है और उन एक्टिविटीज की वजह से पीई से बचने के लिए बहुत लोग बहुत कोशिश करते हैं और पहले हम ये समझते हैं कि एजेंसी पीई होती क्या है इन जस्ट 1 मिनट. बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी पीई इज दैट देयर इज अ नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल हु हैज अ लोकल एजेंट. लोकल से मेरा एग्जांपल यहाँ पे है कि इंडिया में एक एजेंट बैठा हुआ है. तो सबसे पहली चीज तो ही शुड बी एन एजेंट. ही शुड बी एक्टिंग फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल. Second thing, that agent should be a dependent agent. He should not be an independent agent. Now, agent can be dependent or independent both. आप भागीरथ पैलेस के अंदर जितनी भी दुकानें देखते हैं, वो सारी की सारी दुकान के अंदर जो लोग दवाइयां बेच रहे हैं, वो सारे के सारे हैं तो एजेंट. लेकिन अगर आप उनसे जाके कहेंगे कि सर मुझे फाइजर की दवाई खरीदनी चाहिए आपसे या डॉक्टर रेड्डी की लूं, वो कहेगा सर किसी की भी ले लो, मेरे पास सारी हैं एंड आई एम इम्पार्शियल टू ऑल ऑफ देम. अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक के डीलर के पास जाके कहेंगे कि सर मैं आपसे पेप्सी लूं या कोक लूं, सर दोनों बढ़िया, आपको जो अच्छा लगता है, हम तो ठंडाई पीते हैं. So he is an independent agent. An independent agent does not trigger an agency PE. It is a dependent agent who triggers an agency PE. But सिर्फ dependent agent होना भी काफी नहीं है सर. Agency PE होने के लिए ये तो पहली condition है that there should be a local agent who should be a dependent agent. But the second condition is this local agent is concluding contracts in India on behalf of the foreign principal or securing orders in India on behalf of the foreign principal or delivering goods in India on behalf of the foreign principal. ये जो हिंदुस्तान में एजेंट बैठा हुआ है ना सर, ये हिंदुस्तान में बैठा हुआ एजेंट जो है वो अपने फॉरेन प्रिंसिपल्स के लिए बिजनेस लाके दे रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड कर रहा हो. और ये तो इसकी सबसे ट्रेडिशनल डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में कई सारे चेंजेस हैं और कुछ एक चेंजेस इन्हीं वजहों से आए जो कि इस एजेंसी पी के क्लॉज से बचने की, एब्यूज की कोशिश हुआ करती थी उन्हें प्लग करने के लिए. एंड दोस आर द चेंजेस जिनके बारे में अब हम बात करेंगे कि कैसे एमएलआई ने उसे प्लग किया. एक एक करके पहले समझते हैं. अभी मैं इसके अंदर अगली स्लाइड पे जाने से भी पहले एक बड़ा कॉमन डिवाइस जो हम लोगों ने देखा हुआ है, सुना हुआ है, डिसीजंस में भी देखा हुआ है, इंडियन डिसीजंस में भी देखा हुआ है, वो ये हुआ करता है कि वो जो लोकल एजेंट इंडिया में बैठा हुआ है, इट कैन बी अ सब्सिडियरी एंटिटी, इट कैन बी अ ग्रुप एंटिटी, इट कैन बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंटिटी. अगर आप रोल्स रॉयस का डिसीजन देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट, उसमें जो इंडिया के अंदर एक एजेंट बैठा हुआ था, आई थिंक इट्स नेम वाज ANR. इट वाज अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंटिटी, इट वाज नॉट अ सब्सिडियरी. एनीबॉडी कैन बी एन एजेंट. सो दिस लोकल एजेंट इफ इट सेज कि काम कर दो यार, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट खुद कंक्लूड करूंगा तब तो एजेंसी पी बन जाएगी. तो अगर उसका प्रिंसिपल कहता है कि भाई ये काम कर, तू रहने दो, तू ना कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड मत करिए, यू डोंट साइन द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इफ यू विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट तो ना हिंदुस्तान में एजेंसी पी बन जाती है. तुम एक काम करो, जाके प्रिंसिपल को ना सब कुछ समझा, कस्टमर को जाके सब कुछ समझा दो
इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल कस्टमर है उसे जाके बताओ सर मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये डिस्काउंट पॉलिसी है, आपको स्पेशल डिस्काउंट इतने को और दिलवा दूंगा सर क्योंकि आप तो मेरे स्पेशल कस्टमर हो जो हमने चांदनी चौक के अंदर सीखा है, ये मेरे क्रेडिट टर्म्स होंगे। आपने सब कुछ उसे एक्सप्लेन कर दिया एजेंट ने, लेकिन उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बारी आई, हेलो आई थिंक आई कैन हियर सम बैकग्राउंड साउंड एनीवे, सो अगर तुमने यहाँ पे लोकली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था तो एजेंसी पी बन जाएगी। तो प्रिंसिपल ने कहा काम करो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता देना, उसके बाद रुक जाना। कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है ना प्रिंसिपल मैं डायरेक्टली करूंगा, या तो आई विल फ्लाई डाउन टू इंडिया एंड आई विल साइन इट, या फिर आज की डेट में जरूरत क्या है, हम अभी इतनी बढ़िया मीटिंग अगर इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन ही साइन कर सकते हैं। आई विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन। थ्रू दिस जो सेकंड कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिपेंडेंट एजेंट, सेकंड कंडीशन दैट the contract is concluded by the agent, वो condition beat हो जाती है because agent has negotiated the contract but it has not concluded the contract, because concluded शब्द का जो literal interpretation, और अगर आप पुरानी OECD treaty देखते हैं तो उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि he has to sign the contract or he has to negotiate practically all the terms of the contract, but अगर ये documented ही नहीं है तो फिर agency P create होगी कैसे? This is called the contract conclusion loophole। जो second bullet आप देख रहे हैं, this is called this contract conclusion loophole। another loophole, कई बार जो एजेंट बैठा होता है वो कहता है हम तो इंडिपेंडेंट है बॉस। अगर आप उससे पूछे कि आप इंडिपेंडेंट कैसे हैं तो कहेगा सर डिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या होती है, पहले देखते हैं। डिपेंडेंस का डेफिनेशन होना चाहिए आई एम डिपेंडेंट अपॉन वन प्रिंसिपल, बट आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन वन प्रिंसिपल। वन प्रिंसिपल मींस वन लीगल एंटिटी। what if I am dependent upon 24 legal entities, although those 24 legal entities are a part of the same group? Now that is an amazing argument। देखा जाए तो अगर एक एमएनसी ग्रुप के अंदर एक एंटिटी इंडिया में बैठी हुई है और वो उस ग्रुप की बाकी 24 एंटिटीज को सर्विसेज रेंडर कर रही है, तो वो 24 एंटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है और वो किसी और को भी सर्विसेज खास तौर से रेंडर नहीं कर रही है। मेनली वो सर्विसेज इन 24 एंटिटीज को ही रेंडर कर रही है। ये 24 की 24 एंटिटी उस मल्टीनेशनल ग्रुप का हिस्सा है, तो भाई डिपेंडेंस बन तो गई। लेकिन ऐसा भी हो चुका है कि इस इंडियन एंटिटी ने ये आर्ग्यू किया दैट नो 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 नो, यू हैव टू मेजर माय डिपेंडेंस विज़ अ सिंगल एंटिटी एंड नॉट विज़ एन एंटायर ग्रुप, बिकॉज ओईसीडी के अंदर, इंडिया के अंदर भी कोई ग्रुप टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए। जो मैं आपको अभी फैक्ट्स बता रहा हूं, ये फैक्ट्स आर्ग्यू हुए थे जनवरी 19 के अंदर रिपोर्टेड एक डिसीजन इन द केस ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक in which the liaison office of a General Electric Inc. entity, Indian liaison office, it had argued that we are not dependent upon anybody, any single entity, because we work for 24 GE group entities। तो हम तो इंडिपेंडेंट है, हम तो किसी भी एक GE एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, हम तो 24 लोगों के साथ काम करते हैं। वो एक अलग बात है कि 24 के 24 GE ग्रुप की एंटिटीज हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यार ये क्या मजाक है, हम इस पूरी की पूरी चीज को GE ग्रुप की डिपेंडेंट एजेंट ही मान के चलेंगे। सो जो मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज एन अब्यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। Independence is the most abused thing anyway, and the best example is our country anyway. But I don't want to make a political statement here, my apologies for this. In tax treaties also, independence is a concept which is often abused, so we'll talk about that. And there is another abuse, which is that of an arrangement called commissionaire model. Let's look at each of these abuses now one by one. Let's first start with the commissionaire model. This is not commissioner, this is not a typo. ये A जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये A है. It is commissionaire. Commissionaire is actually a concept which is not really core to India, because unlike a lot of civil law countries, we are a common law country. But civil law country में एक बड़ी मजेदार चीज अलाउड है, और वो मजेदार चीज क्या अलाउड है कि एक सेल्स कंपनी जो कि मेन कंपनी है, जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड है, उसे अगर इंडिया के कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो इंडिया के अंदर एक कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। अब ये कमिश्नर कौन है? देखा जाए तो कमिश्नर जो है वो सेल्स कंपनी का एजेंट माना जाना चाहिए, लेकिन कमिश्नर मॉडल में ये एक बड़ी मजेदार बात होती है, कमिश्नर डज नॉट सेल टू द इंडियन कस्टमर एज एन एजेंट। He does not enter into contracts with the Indian customer for and on behalf of the sales company. Instead, it enters into contracts with the Indian customer in its own name. But strangely speaking, how can it do so? Because कमिश्नर के पास खुद को स्टॉक है ही नहीं, और जब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कर भी लेगा कस्टमर के साथ, तो कस्टमर को जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल मिलेगा, जो डिलीवरी मिलेगी, वो कमिश्नर से होके नहीं मिलेगी, वो सेल्स कंपनी से मिलेगी डायरेक्टली।
And mind you, I'm not talking about a back-to-back sale. I'm not talking about a high C sale. I'm not talking about a scenario जहाँ पे build to ship to हो रहा हो. I'm not talking about any of those models, because in all three models, कम से कम for a fraction of second, legal title in the good comes to this intermediary. But commissioner के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता. Commissioner does not acquire legal title for even a fraction of second. It is not just a case कि बिलिंग जो है वो सेल्स कंपनी टू कमिश्नर हो गई और कमिश्नर टू कस्टमर हो गई है, और उसके बाद सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टाइटल जो है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स जो है वो कस्टमर को सेल्स कंपनी डायरेक्टली कर रही है, बट टाइटल जो है वो अभी भी एजेंट के थ्रू होकर निकल रहा है. ऐसा नहीं है. कमिश्नर के अंदर ये बड़ी मजेदार चीज है, और सिविल लॉ के अंदर ये चीज सुनने में बड़ी डाइजेस्टेबल लगती है. हम लोगों को तो सुनने में लगेगा ही बड़ा अजीब, क्योंकि हम लोगों ने तो बड़ा बेसिक थंब रूल पढ़ा हुआ है ना कि यू कैन नॉट ट्रांसफर अ टाइटल दैट यू डोंट इवन हैव. कोई चीज अगर आपके पास है ही नहीं तो आप उसे आगे किसी को बेच नहीं सकते. अगर मैं आपको आज की तारीख में आके कहता हूँ कि सर मैं आपको अंबादीप बिल्डिंग बेचने के लिए तैयार हूं, तो आप सबसे पहले मुझसे कहेंगे गौरव सिंघल आपके पास अंबादीप बिल्डिंग की ओनरशिप है. और अगर मैं आपको कहूंगा नहीं, आई डोंट हैव द ओनरशिप ऑफ अंबादीप बिल्डिंग, यू विल टेल मी दैट आई शुड गेट माय हेड चेक्ड. You will not enter into any discussions with me. But a commissioner model is a strange model in which the civil law allows that a customer जिसके पास एक कमिश्नर आके कहता है कि बॉस मैं आपको अमादीप बिल्डिंग बेचने के लिए तैयार हूं, तो कहेगा ठीक है मैं आपसे खरीदने के लिए तैयार हूं, एज इट इज. मैं आप मेरी जेब से अभी तो कुछ जा नहीं रहा. अगर आप मुझे अमादीप बिल्डिंग का टाइटल एंड पोजीशन दिलवा देते हैं तो मैं पेमेंट कर दूंगा. आई डोंट माइंड दैट. अब उसके लिए whether or not the commissioner has a title to Amaddeep building or not is not something which a customer even needs to check. वो अभी कुछ पे नहीं कर रहा ना साहब. Also, it is possible that by virtue of the conduct of business, by view of the positioning of the commissioner, the customer may have learned कि हाँ ये commissioner हमेशा deliver किया करता है, right? अमादीप बिल्डिंग के केस में ना सही, लेकिन गुड्स के केसेस के अंदर it is possible that the commissioner may be a group company, may be having a name which carries that same logo, and therefore it is known in the market, in the local market कि हाँ जब भी कमिश्नर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फेल नहीं हुआ करता. और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है डेल. दिस इज अ केस लॉ इन केस ऑफ डेल कंप्यूटर्स. इट्स अ नॉर्वेजियन केस लॉ जिसमें डेल की एक आयरिश कंपनी मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी, सेल भी आयरिश कंपनी के थ्री भी किया करती थी, लेकिन बीच में देखिए एक ऑरेंज रंग का बॉक्स आ रहा है, डेल एएस. दिस इज एन एंटिटी लोकेटेड इन नॉर्वे, और ये नॉर्वे की एंटिटी जब भी सेल्स किया करती थी कस्टमर्स को तो ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करती थी. डेल एएस यूज्ड टू टेल कस्टमर्स कि आई विल सेल यू कंप्यूटर्स, आपको कंप्यूटर्स मुझसे मिलेंगे. कस्टमर्स यूज्ड टू बी नॉट वरीड अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज ए इट्स अ डेल एंटिटी, बी दे नो इन द लोकल मार्केट कि आज तक बाकी सब लोगों ने अगर डेल एएस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ऑनर हुआ है. डेल एएस पैसे लेके भाग नहीं जाता. डेल एएस के वेबसाइट के ऊपर हो सकता है डेल की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि डेल एएस के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर होते हैं. एंड येट माइंड यू, Dell AS will not at any stage say that it is representing Dell Ireland. It will never say that. It will always say that it is entering into a P2P contract. और यही अंतर है कमिश्नर में और लोकल एक नॉर्मल एजेंट में. बिकॉज एजेंट हमेशा ये कहता कि I Dell AS am selling computers on behalf of Dell Ireland, whereas a commissioner says I Dell AS am promising to sell you computers. Full stop. It will not say that I'm entering into these contracts on behalf of anybody else. That is the distinction, and that is something which because of the civil law is completely permissible. नॉर्वे के भी अलाउ के अंदर ये चीज परमिसिबल है, और देखा जाए तो इंडिया में भी कोई खास मनाही नहीं है. अब ये बड़ी एक बड़ी दिक्कत की स्टेटमेंट है, बिकॉज इंडिया में हमने कभी ऐसा होता हुआ देखा नहीं है, शायद हमें ऐसा लगता है. लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे आपको कभी कभी कुछ एक सेक्टर्स के अंदर कमिश्नर्स के एग्जाम्पल दिखेंगे जहां पे जो लोकल कस्टमर जिसके साथ परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो ये चेक नहीं करता है कि वो जो कमिट कर रहा है दैट आई विल सेल टू यू, वेदर ही हैज द स्टॉक, ही हैज अ टाइटल और नॉट इन द फर्स्ट प्लेस. और इस पूरी कहानी के अंदर अब्यूज क्या हो रही है? व्हाई इज दिस कमिश्नर मॉडल एन अब्यूज? बिकॉज एजेंसी पी विल गेट ट्रिगर्ड ओनली इफ देयर इज एन एजेंट सिटिंग हियर. बट कमिश्नर मॉडल के अंदर द होल आर्ग्यूमेंट इज दैट देयर इज नो एजेंट. Commissioner is contracting on a principal to principal basis. Because of the absence of the agent, agency PE does not get triggered traditionally because of a commissioner model. And I can share you more reading material about this thing, but this was becoming a problem world over because commissioner model was being abused left, right, and center. And in order to plug this abuse, multilateral instrument has an article which has suggested how to plug it. The next, and I'll take you through the article
after just 1 or 2 slides. The next abuse is something that we have discussed just now, by shifting the place of contract conclusion. जहां पे एक सेल्स कंपनी ने अपना एक कमिश्नर अपॉइंट तो कर दिया, कमिश्नर को जो रेम्यूनरेशन मिलती है वो भी सेल्स कंपनी के रेवेन्यूज के बेसिस पे मिला करती है, और कमिश्नर जो है या जो एजेंट है, उसे कमिश्नर भी नहीं बोलना चाहते तो चलिए सिर्फ एजेंट बोल देते हैं, जो एजेंट है वो कस्टमर्स को जाके परसुएट करता है, उसे टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकता साहब। लेकिन जब एक्चुअल के अंदर ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ चलिए वो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की बारी आ गई है, तो एजेंट बैक ऑफ करके कहेगा डोंट वरी, मैं नहीं लेकिन डायरेक्टली आपका प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूं मैं। तो देखा जाए तो एजेंट इज प्लेइंग अ प्रिंसिपल रोल इन कंक्लूजन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट येट इट इज आर्ग्यूड he did not sign the contract, he did not conclude the contract. Instead of that, the principal concluded the contract, and agency P बनाने के लिए तो the principal should, the agent should conclude the contract at least as per the traditional definition. इस definition में domestic law में भी और treaties में भी अब धीरे धीरे चेंज आना शुरू हुआ है, वो चेंज इसी BEPS प्रोजेक्ट की वजह से आया है, और जिन treaties में नहीं भी आ रहा था उनमें भी अब MLI की वजह से ये आएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं कि MLI की एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, जिसके थ्रू कमिश्नर मॉडल और ये जो दूसरा लूप होल मैं आपको बता रहा हूं, शिफ्टिंग ऑफ प्लेस ऑफ कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को एक ही साथ टारगेट किया गया है। एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। जो आप पहला हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं वो दूसरे अब्यूज को टारगेट कर रहा है, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन। जो आप नेक्स्ट हाईलाइटेड क्लॉज देख रहे हैं सेकंड सब बुलेट के अंदर, दैट इज टारगेटिंग द कमिश्नर मॉडल। आइए एक एक करके से साथ साथ रीड करते हैं। वेयर a person is acting on behalf of an enterprise and in doing so habitually concludes contract। ये तो पहले भी लिखा हुआ था, जो एजेंट है अगर वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड कर रहा है तब तो एजेंसी पी बनेगी, ये पहले भी लिखा हुआ था, ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज में। जो ऐड किया गया वो क्या है, वो बोल्ड में आ रहा है, और that agent plays a principal role leading to conclusion of contract that are routinely concluded without material modification by the principal। ये है सब वो लाइन जो कि ऐड की गई है हमारे डोमेस्टिक लॉ में भी, और क्योंकि ट्रीटी ज्यादा बेनिफिशियल होती है तो कल को एसएससी कहेगा कि सर हम डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से नहीं चलते, ट्रीटी में तो ये लाइन एडेड ही नहीं थी और ट्रीटी में तो अभी भी पी नहीं बन पाएगी। तो लीजिए साहब, ट्रीटी में ऐड करने के लिए एमएलआई के अंदर ये लाइन डाल दी गई है कि अब इफ एन एजेंट इज नॉट कंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, but instead of that he is playing a principal role which is leading to the conclusion of that contract, but conclusion of the contract is not done by, has now been done by the principal, although वो प्रिंसिपल ना ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। जब एजेंट ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंसिपल रोल प्ले करके कंक्लूड नेगोशिएट करके फ्रीज कर दिया तो उसके बाद साइन तो प्रिंसिपल ही करता है, लेकिन फिर उसके बाद वो कोई मटेरियल मॉडिफिकेशंस नहीं किया करता अगर ये चीज रूटीनली नजर आ रही है। तो इसका मतलब लीजिए, जो अभी तक आप पहली वाली अब्यूज किया कर रहे थे बाय शिफ्टिंग द प्लेस ऑफ कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, वो अब्यूज खत्म हो जाएगी। आगे क्या किया, कमिश्नर मॉडल को कैसे टारगेट किया, आगे लिखा हुआ है एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर व्हाट, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेम ऑफ द एंटरप्राइज। तो पहले भी लिखा हुआ था इफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल एंटरप्राइज, तभी तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड कर रहा है। बट नई चीज क्या डाली, नई क्लॉज जो दूसरा क्लॉज है उसमें ये बात नहीं लिखी हुई है that these contracts are in the name of the enterprise, that they can be in anybody's name, they can also be in the name of the local agent, they can be in the name of this so-called commissioner. The only test is that through this contract transfer of ownership of property owned by the principal enterprise happens. Mind you, यहाँ पे language कितनी बढ़िया लिखी हुई है, देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ that the contract has to be in the name of the foreign principal enterprise. No, it only says that by virtue of this contract, the property which is owned by the principal, that should get transferred. If that test is met, the fact that the contract is not in the name of the enterprise, but instead it is in the name of the commissioner himself, will not stop creating an agency PA. Now at this stage, I will stop, take up a few of the questions which have been asked, and I will wait for you to ask more questions because I'm aware agency P is a concept जो ना सुन के पहली बार में हजम ही नहीं होता। Because all said and done, देखिए साहब मैं 40 साल का हो गया हूँ, कब से जब मैं आई थिंक 11th या 12th स्टैंडर्ड में था तब मैंने एजेंसी का लॉ पढ़ा था, और उस तक में पढ़ा था nobody can pass on a title which he does not have। मुझे सुन के बड़ी हैरानी होती है कि यार एक बंदे के पास कोई चीज है नहीं लेकिन वो बेचने के लिए निकल गया, ये तो बंटी और बबली वाला मामला लग रहा है। लेकिन सिविल लॉ कहता है जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अगर कस्टमर खरीदने के लिए तैयार है
तो उसे प्रॉब्लम क्या है? इफ ही इज रेडी टू टेक द वर्ड ऑफ द कमिश्नर, सो बी इट. और कस्टमर को प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है बिकॉज उसने एक्सपीरियंस से अपनी लोकल मार्केट में देखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पहली चीज तो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और दूसरा यूजुअली कमिश्नर जो होता है, ये ग्रुप कंपनी होती है, वो ध्यान रखते हैं कि अपने नाम में बड़ा बड़ा अपने लोगों को, अपने ट्रेड नेम को, डेल को जरूर लिख दें ताकि लोगों के दिमाग में कोई शक आने भी वाला हो तो ना. So at this stage, I am now clicking the questions which have been raised. There are 2 on chat and 1 on Q&A. 1 minute, Gaurav ji. Please. I think this is what very important plethora of disputes and plethora of commissioner those are working right now. क्योंकि ये इतना important point है कि ये concept बहुत massively use हो रहा है. बिल्कुल. I'm so happy you are saying that. हाँ, इसको हम थोड़ा सा आपने जैसे डिफरेंशिएट किया कि व्हाट इज डिपेंडेंट एजेंट एंड डिपेंडेंट एजेंसी पी रादर देन, और ये जो कमिश्नर हैं वो बिल्कुल सिमिलर फंक्शन में ही वर्क करते हैं, बट दे आर ट्रीटेड एज पी. और यदि वो पी बन गए तो कितने हजारों लाखों पी आज आपको एकदम खड़े हुए दिख जाएंगे इमीडिएट वंस दिस क्लॉज ऑफ एमएलआई इज इम्प्लीमेंटेड. तो ये कौन से ऐसे कंट्री हैं जहां पे ये मैचिंग यानी मैरिज हो चुकी है एमएलआईज की आपस में फॉर दिस पर्टिकुलर क्लॉज? यदि कुछ आप हाईलाइट कर पाए तो. जो मैंने अभी पिछले क्लॉज के अंदर जो 23 कंट्रीज लिखी थी जिनमें जहां हाईलाइटिंग करी है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव अग्रीड फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लॉज. अच्छा, उसमें से कहां पे दोनों कंट्रीज ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है वो हमें मैच करना पड़ेगा ना अभी. हाँ, इंडिया ने तो सब में ही कर रहा है और उन बाकी देशों ने भी हाँ ही किया. देयरफॉर वहां पे मैचिंग हो चुकी है. बट आई विल डू वन थिंग, आई एम जॉटिंग दिस डाउन. Aman is my team member and he has helped me through this thing. So Aman, if you are online, please jot down this query. I want to present tomorrow a table. I already have the table, I believe, somewhere. I want to present tomorrow a table in the second session of the countries which have accepted in such a fashion that दोनों तरफ पे meeting of mind हो चुका है और PE का एक clause already update हो चुका है. Rohit sir, already the answer to that, prima facie answer to that, which I'm giving you off the cuff, is most of the countries which have already ratified India's treaties, MLI vis-a-vis India's treaties, उन cases में incorporate हो चुका है. But I'll give you a far more sharper list tomorrow. Yes, because you know this by this making. Gauravji, by what I understand, whereof 1st April, most of the MNCs who are having their liaison offices or their project offices or their subsidiaries in India, right, and they are selling goods here, right, I believe most of them will come under this clause. So they also have, because directly or indirectly, if you look into their mails, right, or the moment you get into their inner servers, right, this information would easily become accessible, which till now the Ps were not being able to conduct this, to look into the P issue, but now it will become very simpler for the government tax authorities to create Ps. सर जब टाइम हुआ करता है ना तो मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ धन्ना सेठ की. बट एसेंशियली दिस इज अ चोर पुलिस का खेल. मोस्ट ऑफ द एमएनसीज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एक्चुअली, दे हैव एक्सीलेंट कंसल्टेंट्स. जिनके एक्सीलेंट कंसल्टेंट्स नहीं भी है, सब ऑप्टिमल कंसल्टेंट्स है, मेरे जैसे सिंपल लोग हैं, वो भी इन चीजों को उन्हें अपडेट करते हैं. एंड एट सम स्टेज वी एनकरेज देम कि बॉस आप इंडिया में टैक्स पे कीजिए ना, और इंडिया में टैक्स पे करने से बचना है अगर आपको पी बना के, तो आप पी मत बनाइए. बट देन you have a structure over here which is carrying on more functions, because of which anyway TP में इंडिया में एट्रीब्यूशन ज्यादा होते हैं. तो कैसे भी करके भारत सरकार को अगर सही अगर रेवेन्यू मिल रहा है तो किसी को दिक्कत नहीं है. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, a lot of MNCs have already migrated. इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि वो 1 अप्रैल 2020 से जब ये वेब्स का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तभी, क्योंकि दिस इज इन पब्लिक डोमेन, राइट, a lot of MNCs have already migrated to structures which are somewhat protected from the commissioner related amendments that I just now told you about. Some have migrated in principle, some have migrated only on paper, of course. I'm not commenting how many have migrated only on paper. I don't have the statistics, but I'm suspecting कि कई ऐसे होंगे जो सिर्फ पेपर पे migrate कर रहे होंगे. A lot of them have actually migrated in spirit. दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक कॉन्सेप्ट आपको और देखने में मिलता है, आगे की एक स्लाइड में लिखा हुआ भी आपको नजर आएगा. इट इज कॉल्ड एन LRD, लिमिटेड रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर. लिमिटेड रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट अ कमिश्नर. और जो चेंजेस मैंने अभी आपको बताए,
वो चेंजेस कमिश्नर को तो हिट करते हैं, बट LRD को, लिमिटेड रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर को हिट नहीं करते हैं। और ये बात मैं अपनी इंटरप्रिटेशन से सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, ये इतनी बड़ी हिमाकत में नहीं कर रहा हूँ। एक्शन प्लान 7 का जो रिपोर्ट है बेप्स की, उसमें बात लिखी हुई है। तो जो एक्शन प्लान 7 की रिकमेंडेशंस के थ्रू MLI ने इन क्लॉजेस को इनकॉर्पोरेट किया है आपकी ट्रीटी में, लॉजिकली स्पीकिंग वो LRD की एक्सक्लूजन जो एक्शन प्लान 7 में लिखी हुई है, वो एक्सक्लूजन यहाँ पे फ्लो कर गई है। बट ऑफ कोर्स यू विल सी दैट नॉट एवरीथिंग इज सो ब्लैक एंड व्हाइट। कमिश्नर, LRD, ये ऐसा नहीं है कि LRD बिल्कुल व्हाइट है एंड कमिश्नर बिल्कुल ब्लैक है। बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारी शेड्स ऑफ ग्रे होती है सर, और कौन सी शेड के ऊपर ये इंटरप्रिटेशन इंडियन जुडिशरी मानने के लिए तैयार होगी दैट इट इज एन LRD एंड देयरफॉर इस पे अमेंडमेंट नहीं लगेगी, और कौन सी शेड के ऊपर जुडिशरी कहेगी नो गेट लॉस्ट। हमारे हिसाब से अब ये इतना डार्क हो गया कि इट इज नियरली कमिश्नर, आप माने या ना माने, और हम तो इसको भी एजेंसी मानेंगे। दैट इज समथिंग दैट वी विल वेट एंड सी, बट यस right that a lot of MNCs are affected because of। और गौरव जी इसमें एक पॉइंट और आप साथ में ऐड कर लीजिए जिसको आप कंसीडर करेंगे। एक्चुअली टैक्स ट्रीटिंग इट एज ए पी और नॉट ट्रीटिंग इट एज ए पी एंड ट्रीटिंग इट एज ए इंटरमीडिएटरी, व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन इन दीज टू। जो इंटरमीडिएटरी है, कमिश्नर है, उसकी टैक्सेबल इनकम तो यहाँ हो ही रही है क्योंकि हम उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मान रहे। उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स भी लग रहा है, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स भी लग रहा है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यदि पी हो जाता है तो ALP जो है ALP इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप इसको भी एक इम्पैक्ट को भी एक हाईलाइट कर दीजिएगा। It's a good point. Thank you so much. So basically, let's also add that tomorrow. The core point that Rohit Saab has raised is कि जो कमिश्नर है उसको जितना पैसा मिल रहा है वो तो इंडिया में टैक्स हो ही रहा है, एनीवे वो तो लोकल है। लेकिन अगर पी बन जाती है तो एक सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि कमिश्नर को पैसा मिल रहा है और वो इंडिया में टैक्स हो रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब फर्दर कोई एट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है? इट मे डिपेंड अपॉन फैक्ट्स। अगर जो लोकल एजेंट है it is also subjected to transfer pricing regulations because it's a group company, it's an associated enterprise, तो हो सकता है हम ये लगाने की कोशिश करें जो मॉर्गन स्टैनली ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर लोकल एंटिटी को आर्म्स लेंथ एट्रीब्यूशन ट्रांसफर प्राइसिंग में हो ही रहा है तो आप पी लगा के क्या कर लोगे? और अगर वो इंडियन एंटिटी एनीवे ग्रुप कंपनी है ही नहीं, इट्स नॉट एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तब तो आर्गुमेंट एनीवे मॉर्गन स्टैनली की नहीं लगेगी और इन दैट केस पी के ऊपर एडिशनल एट्रीब्यूशन होगा। एक ये भी आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता है सर, और मैं उस पर अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट्स अ सेपरेट कंट्रोवर्सी, जिसमें ये तक सवाल उठा हुआ है और मुझे भी लगता है सवाल बहुत वैलिड है कि मॉर्गन स्टैनली जब ये बात कही थी तो क्या ये बात एजेंसी पी पे भी क्या हमें उतने ही तक लागू करनी चाहिए? आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट्स वर्ड इज द लॉ ऑफ द लैंड, आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन सेज सो। येट there's a lot of literature which says that agency P के केस के अंदर arm's length attribution to the agent does not extinguish the attribution to the PE, but that's not something where I'm getting into right now. But it's a very fair point, Rohit Saab, and I take your point. I have some questions on chat and then I'll move to Q&A. Can platform be considered as a commissioner in e-com transaction? Can platform be considered as a commissioner in e-commerce transaction? मैंने इस सेशन के शुरुआत में कहा था ना कि अगर मुझे कभी-कभी कोई क्वेश्चन का जवाब इमीडिएटली नहीं आता होगा तो I'll pretend कि मुझे आता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मैं कहूँगा ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं ये तो मैं आपको बताऊंगा, एक्चुअल के अंदर मैं इसके बारे में सोचूंगा ये वो वाला सवाल आ गया जी। सर ई-कॉमर्स के केस में एक इशू और बड़ा मजेदार जो आने वाला है वो ये है कि एक तरफ तो हमने ई कॉमर्स के ऊपर इक्वलाइजेशन लवाए लगा दी और इक्वलाइजेशन लवाए लगाने की वजह से सेक्शन 10 सबसेक्शन 50 में लिख दिया है। ऑल्दो उसमें ड्राफ्टिंग का एक तरीके से माना जाए तो हो सकता है एक एरर भी हो क्योंकि उसमें 1420 की जगह 1421 लिख दिया गया, बट वो आई एम गेसिंग ठीक हो जाएगा। बट इसका मतलब ये है कि अगर इक्वलाइजेशन लवाए लगा दिया है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है, जो ऑपरेटर है, उसकी इनकम तो नहीं टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन यस, योर क्वेश्चन लिव्स ऑन that if the function carried on by the e-commerce operator triggers commissioner structure, then जो ultimate seller है उस ultimate seller की इंडिया में पी कैसे ना बनाई जाए? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को और ज्यादा आसानी से सॉल्व किया जाएगा जब SCP के रेगुलेशंस नोटिफाई किए जाएंगे। बिकॉज आफ्टर ऑल SCP क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो लोग जो इंडिया में फिजिकली नहीं बैठे लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली यहाँ बहुत बिजनेस कर रहे हैं थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, उनको इंडिया में टैक्स करने का तरीका निकालने की कोशिश SCP कर रहा है। तो शायद इसका आंसर SCP के थ्रू भी दिया जाए, बट इट्स सर स्टिल अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक देयर आर लेयर्स एंड लेयर्स टू दिस क्वेश्चन। मैं जितना सोच रहा हूं अभी राइट नाउ, आई हैव टू थिंक मोर अबाउट इट, आई रियली हैव टू थिंक मोर अबाउट इट। देयर आर सम क्वेश्चन इन द Q&A बॉक्स एज वेल।
Vijay ji has asked the question, if agency P, if Indian parties facilitating conclusion of contract by organizing BC meetings and translating and interpreting conversation between two parties, will that be agency P as per amendment? See, again, when we are talking about shades, if it is only translation, if it is only interpretation, then can we say that the Indian agent has played a principal role leading to conclusion of contract? I take your point कि अगर translation नहीं करते तो बातचीत ही नहीं हो पाती, तो conclusion तो नहीं हो पाता, लेकिन negotiation के अंदर कुछ भी अगर participate नहीं किया है, तो शायद मेरा अपना मानना ये है कि मुझे नहीं लगता सर कि सिर्फ negotiation, सिर्फ interpretation, सिर्फ translation से एजेंसी पी क्रिएट होती है, और मेरे पास इसके लिए एक आध जूरिस्प्रूडेंस भी है, बट हाँ, इफ यू ऐड मोर एंड मोर शेड्स टू इट कि अच्छा चलो ट्रांसलेशन के साथ में वो दो चीजें और ऐड कर देते हैं, एंड इफ वी कीप ऑन एडिंग ऑन टॉप ऑफ इट, तो शायद किसी ना किसी स्टेज के ऊपर एजेंसी पी बन भी जाए. छोटी मोटी मिस्टेक्स माफ की जा सकती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को अगर हम ऐड करते जाएंगे तो माय वाइफ इवन डज नॉट पार्डन माय दो स्मॉल मिस्टेक्स व्हेन एक्यूमुलेटेड, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो द पॉसिबिलिटी इज. Second question is, subsidiaries would also be considered as an agency P in chain scenario? Not necessarily, sir. Veni Thaparji, Ms. Veni has asked this question that will subsidiaries be considered as agency P? See, agency PE has nothing to do with the fact that whether or not the local entity is a subsidiary or not. As I gave you an example just now, Rolls-Royce Delhi High Court में जो agent था वो कोई ग्रुप कंपनी भी नहीं था, subsidiary तो बहुत दूर की बात है. वाइस वर्सा देखिएगा, कितने सारे केसेस के अंदर हम देखते हैं जहां पे इंडिया के अंदर सब्सिडरीज बैठी होती है, बट दे आर इंडिपेंडेंट, एंड देयरफॉर the fact that it is a subsidiary does not necessarily mean that an agency P will be triggered, and this is something which is also written in a lot of treaties in the last paragraph of Article 5, that merely because you are a subsidiary does not mean that you are a PE, agency or fixed, either ways. It depends more upon your relationship in terms of how you operate vis-a-vis your principal. I think at this stage, I should ask you a question. We are barely 2 minutes away from the cut down point. I realize, and I should apologize for this, I'm taking your very important time, but I do realize that I'm going a bit slow here. If you permit me, I can extend it today, or if you permit me, we can make it, instead of a 2-day session, a 3-day session, or I will try my level best to not put you through this torture so much and try to speed it up a bit tomorrow, permitting, you know, that you guys are, all of you esteemed people are following what I'm saying, and therefore we can probably close the session today and decide about it whether or not to extend tomorrow, or if you want, I'll be more than happy to go on. मैं टैक्स को खाने पीने वाला आदमी हूँ, तो अगर आप मुझे कहेंगे कि गौरव 1 बजे की जगह 2 बजे फिनिश कर देना और वो 2 बजे PM नहीं AM होगा, तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा. मुझे सिर्फ पानी चाहिए, वो मैं अपने साथ लेके बैठा हूँ. मनु जी, Gaurav ji has initially decided, you know, obviously, at least I or personally would like you to go at the pace at what you are going, because, you know, we are trying to understand the new concept, you know, which is coming in. So I would request you not to hurry up for the benefit of all speakers. Perfect. You know, because we are here to grasp and understand the law. Sir. Okay, and we look upon you to, you know, make us go through all in detail so that as a layman we can understand and then enact upon it. So as initially decided, it would be a 2-day, but yes, now hearing you, I feel there is a need for a layover for a 3rd day. And if need be, we are ready to go for the 3rd day. Why we are saying 2 hours? Because, you know, everybody is sitting at home. You have, you know, time constraint, you know, sitting at one space. You know, it becomes a bit, though it has been very interesting, I personally would like you to carry forward. But I would rather request you to split it over to a 3rd day. I don't mind that at all, and I'll be happy to. I believe all the panelists are on same. Rohit, I think it's. We have to ask Vipanji if he has planned any other group meeting, and we may have to adjust. No, we will manage. We will manage, and if any time variation required, we will let you know. Otherwise, continuously we can go Wednesday, Thursday, and Friday. And if any time variation for Friday is required, then that we will let you know. Sure. And Manuji has rightly said, and we should go ahead with his wishes and carry on. Rohit, timeline we will confirm tomorrow only. No worries, don't worry. That is timeline we will. So right now we are booked for tomorrow at 11, and
I would like to thank Gaurav ji for his deliberations. Thank you so I much. would request Anil Sharma ji to give his, word of thanks and No, I will request Baldev ji his, also, Baldev Raj ji yeah. also to speak something, and then Anil ji may vote of thanks. Guruji, Sir. You are educated us very smoothly and step by step. That's very nicely with examples also. Sir. We delighted to know more practical. If tomorrow, as you said, you will make a deliver with the charts and other examples and case studies, Sir. that will be more useful for us. That I hope we will enjoy and educate it tomorrow also on the same line which today we have. And Sir. thank you for your delighted informations. Thank you so much, sir. Probably you don't know, but one of my closest friend, he has described his experience of working under you. He started his articles with you, and today he's one of the directors, where I was also working at some point of time. So I really look up to you, Anil Saab. I've heard you so many times. So it's really an honor for me to be a part of such an esteemed panel, such an esteemed group. And as I mentioned, tax के बारे में आप मुझे कभी भी कह दीजिए, this is usually my wife's complaint that गौरव को kidnap भी करना हो, जैसे पहले बच्चों को kidnap करने के लिए टॉफी दिखाया करते थे, अगर गौरव को जाके कहोगे कि टैक्स पे कई सेमिनार बोलना है, वो आराम से जाके किसी भी वैन में बैठ जाएगा. So it's really an honor, sir, that I'm in such an esteemed panel. I'll be more than happy to contribute to the best of my ability. Thank you. It was really Over to to hear you, and your style of delivery was so I would say very, I would say very beautiful. I would like to use that word. Thank you so much. आपने कहा कि मैं 40 साल का हो गया हूँ, और मुझे लगता है आज आपने 40 साल होके 40 साल प्रैक्टिस वाले को समझाया कुछ सब्जेक्ट, तो बहुत अच्छा लगेगा. Please don't say this, sir. Please don't say this, but we are all learners here, and मैं समझता हूँ कि जो मैंने इनिशियली आपसे पॉइंट रिक्वेस्ट किया था कि that you make your presentation very basic, because most of the participants may not be regular practitioner into this particular area. I think you have kept that expectation, and I'm really pleased, and we look forward tomorrow and day after also, whatever the timings are decided, to hear you more on this. And I'm quite sure that all the participants will get benefited with this. I am thankful to Rohit ji and Vipin ji for organizing this, and I'm very surprised to see Rohit ji throughout the session, and I think he enjoyed this. So that credit goes to Manu, that he's selecting such topics where international taxation, your indirect tax expert is also attending full day for the full session. So in this session, we had a bonus. And we had a bonus of this indirect taxation linkage also, because this is OECD, all decisions which are impacting the GST also in taxation. So that is my suggestions to all the rather my request to all the participants. I am sure most you that the way Gaurav ji has explained, you must have understood the subject. But still, if you have any question, luckily we are going to have him tomorrow also. So you can send us a mail. So first thing tomorrow we'll do, take the questions for whatever has been explained today. Those questions can be taken by Gaurav ji tomorrow first, so that at least this part is settled, and then he can go forward. So thank you very much to all the participants, and very, very special thanks to Gaurav and my co-participants. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Rohit ji, I would request you to deliver the final vote of thanks. Wese though you've done it, but formally. Vote of thanks has already been given by our Anil Sharma ji. And bus, I will add one thing for Gaurav Singhal ji this time, because we always found of listening the speakers, and among one of the best speakers on international taxation, he is speaking from concepts, and his concepts are in his heart. When you speak from heart with concepts, these types of deliberations comes.
So that's why I want to give him full marks. And because I am a GST guy and listening to international tax, so if I am understanding something, then you can understand that what type of conceptual clarity he must be having. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Gaurav ji. Thank you. We are honored to have you. And see you tomorrow. And I hope all our, endeavors and our knowledge is enriched. Thank you. Sure. Thank you so much, sir. Thank you, Gaurav ji. Thank you. Thank you. Thank you. Should I end the meeting? Yes. Thank you.